Good evening, friends. Welcome you all to PSR Edge channel and PSR Edge group. So today's agenda is to solve previous year question paper of political science optional, and specifically we will be doing paper 2 section 2. This is part 2 of the video. In the first part we have solved question number 5 on all the 5 subpart of the it, and now we'll start off with question number 6A. I think the question was based on NAM, and the agenda will be like the way we'll solve it. We'll read the question first. Everybody should try to tell what did you understand from the question. Just we'll discuss the rough structure of the answer that we should be writing. We'll just not go into the details of it, but just scholarly opinion that you guys remember and the flow of the answer that we should write. Okay, and apart from that, I request all of you to please keep your responses short and as crisp as possible. If required, feel free to open up your notes and notebooks and read from it. ठीक है, स्टार्ट करते हैं सर. क्वेश्चन नंबर 6A थोड़ा सा फिर से करते हैं, थोड़ा अच्छे से. नाम वाला क्वेश्चन था ना. अगर आप लोगों ने पहले डिस्कस करा है तो प्लीज कोई तो क्विकली समराइज कर दो पुटिन सर, है ना. Okay, sir. So, firstly, what we thought was we should introduce it with the historical aspect of NAM because it was क्वेश्चन नंबर 6A है 20 मार्क्स के लिए. नॉन अलाइनमेंट वाज लिटिल मोर देन अ रैशनल स्ट्रेटजी ऑन पार्ट ऑफ मटेरियली वीक इंडिया टू मैक्सिमाइज इट्स इंटरेस्ट विद अ बाइपोलर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ग्लोबल पावर. कमेंट. ठीक है सर, कंटिन्यू आंसर बताइए. Okay, so what we thought was because it was a 20 marker question and we were supposed to write 4 pages, so we thought we should just go for a historical perspective of NAM because the question is already loaded in the form that NAM was what was the construct of arising of NAM. So we thought that we should fill the introduction in the same manner. And after that, we were of the opinion that scholarly views are very much indeed very much important. So what we thought was we would make it in phase. Okay, so in the phase, we would use the scholarly view of S. Jaishankar sir. In his book, he has meticulously explained what is NAM to him. And after that, in the conclusionary part, we will digress on this for a long time. For the front page, we would go for historical perspective, and the second and third page would go for what were the phases of NAM, what was the significance of NAM, and the scholarly opinion on the NAM, like C. Raja Mohan and Raja Menon. Okay, and including S. Jaishankar's view. And in the conclusionary part, we thought that we should add the view of a research paper by CPR, Center for Policy Research, India Strategy for a World Adrift, where they have discussed what should be the current strategy of India, how NAM has functioned, and what should be the future prospects of NAM. This was the whole strategy structure which we had discussed earlier. If anyone else wants to change in the structure or wants some addition, subtraction to the structure, then please feel free to add it. पहले तो ये बताओ कि क्वेश्चन से समझ के आता है व्हाट इज द क्रक्स ऑफ द क्वेश्चन सभी के लिए. मतलब why India rationally choose that the question they are asking? No, I think it मतलब in my opinion it seems that they are asking that जो आइडियलिज्म वर्सेस रियलिज्म वाला डिबेट है ना, कि इंडिया का जो नैम अलाइनमेंट था नॉन अलाइनमेंट, was it a realist posture or was it an idealist posture? That's how I look at it. यस, और क्वेश्चन उस पे भी पूछ रहा है कि हमारे पास उस समय रिसोर्सेज थे कि नहीं, डायरेक्टली उस चीज को भी पॉइंट कर रहा है. अरे मतलब बेसिकली देखो क्या होता है ना, मोर ऑफन देन नॉट नेहरूज नैम वाज लाइक सीन एज एन आइडियलिस्टिक पोस्चर ऑफ इंडिया, कि मतलब शानपट्टी कर रहे हैं बेकार में, मतलब वी आर जस्ट ट्राइंग टू बिग प्रोजेक्ट आवरसेल्फ एज अ बिग लीडर एंड ऑल दैट. बट इन रियलिटी अगर रियलिस्ट व्यू पॉइंट देखे तो रियलिस्ट लोग बोलते हैं ना कि इंडिया के पास रिसोर्सेज कम थे, इसीलिए वी वांटेड टू गेन बेनिफिट फ्रॉम बोथ द सुपर पावर्स. हम रियलिस्ट मतलब कोई स्कॉलर है जो कहते हैं कि नैम वाज एक्चुअली अ रियलिस्ट मूवमेंट इन द डिस्गाइज ऑफ आइडियलिस्टिक पोस्चरिंग. तो मुझे लग रहा है क्रक्स ये है क्वेश्चन का. आप लोग प्लीज मतलब बता दीजिए सही है गलत है, एनी अदर ओपिनियन इफ देयर इज. का मेन क्रक्स तो खैर आपने बता ही दिया है कि आइडियलिज्म वर्सेस रेशनलिज्म वाला जो डिबेट है. सेकेंडली व्हेन वी से नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट इज मोर देन अ रेशनल स्ट्रेटजी, तो रेशनल स्ट्रेटजी उस समय ये थी कि रेशनली वी शुड हैव अ मतलब कंप्लीट ऑटोनॉमी, जो हमारी ऑटोनॉमस स्ट्रेटजी थी कि जहाँ पे हमें किसी भी पावर की तरफ ज्यादा जो है बेंड नहीं करना है और किसी पावर को अपने ऊपर ज्यादा हावी नहीं होने देना है. एट द सेम टाइम मेंटली वीक इंडिया वर्ड यूज, ये जो टर्म यूज करी गई है
मेटेरियली वीक इंडिया बिकॉज वी वर डिपेंडेंट ऑन बोथ द पावर्स। अगर हम टेक्नोलॉजिकली एक सुपर पावर पर डिपेंड थे तो वही जो है जो रिसोर्सेज हैं उसके लिए दूसरे कंट्री के ऊपर डिपेंडेंट थे। उस समय हमने देखा था जो यूएस के कई सारे प्रोग्राम्स थे जिसकी वजह से इंडिया बेनिफिट उठा रहा था। एट द सेम टाइम वी वर डिपेंडेंट ऑन रशिया फॉर टेक्नोलॉजी बिकॉज यूएस से हमें टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट में कोई भी हेल्प नहीं करता था। सो वहाँ पे उस समय जो है हमारे लिए बेसिकली ये था कि कैसे हम अपने जो है इंटरेस्ट को मैक्सिमाइज करते हैं। तो उस समय इंटरेस्ट क्या था हमारे मैक्सिमाइज करने के लिए, उस पर डिबेट हो सकता है, उसके ऊपर क्वेश्चन लिख सकते हैं हम लोग। सो स्ट्रक्चर तो आई थिंक देव जी ने पहले बताया था। आई थिंक वो स्ट्रक्चर तो परफेक्टली सही है। उसके अलावा लाइक यू सेड कि इट इज अ वेरी फोरफ्रंट क्वेश्चन जहाँ पे हम आइडियलिज्म वर्सेस रिलेशनलिज्म की बात कर रहे हैं। तो उसके मतलब उसके इर्द गिर्द ही पूरा क्वेश्चन घूम रहा है। उसके बाद मेरे हिसाब से कुछ है नहीं कि ज्यादा हम फालतू कुछ इसमें लिखे। बहुत ही टू द पॉइंट क्वेश्चन है ये वाला कमेंट करने के लिए। मैं ऑडिबल हूँ? हाँ, you're audible. नाउ आई सी कल क्या हुआ होगा। अच्छा, I एक think चीज, yeah, क्वेश्चन टू बी ऑनेस्ट नो, इट लुक्स स्ट्रेट फॉरवर्ड, बट इन माय ओपिनियन इसमें सब लोग यही गलती करेंगे, दे विल राइट द आंसर ऑफ नैम, मतलब जो होता है ना नॉर्मल, हाँ मतलब जैसे नॉर्मल नहीं करते मैंने भी अपन वही हिस्टोरिकल किया। पर्सपेक्टिव, पॉजिटिव नेगेटिव, वैसा लिख देंगे आंसर। थोड़ा ये मतलब ट्रिकी क्वेश्चन लग रहा है मेरे को। आई हाँ, टोटली क्वेश्चन एग्री विद यू मुझे क्योंकि तो समझ आ रहा है कि दिस क्वेश्चन इज अबाउट इंडियाज स्मार्टनेस, हाउ इंडिया डेल्ट विद दैट सिचुएशन वेरी स्मार्टली, तो वी हैव टू जस्टिफाई दैट। इसीलिए कमेंट भी एक जो ने यहाँ पे कीवर्ड डाला है, दैट इज वेरी स्ट्रेटेजिक। करेक्ट करेक्ट, तो क्वेश्चन वही है कि इंडिया के क्या चॉइसेस थे एंड हाउ यू नो इट वाज आइडियलिस्टिक वर्सेस रियलिस्टिक वाला चीज, तो मतलब कंटेंट वही रहेगा। अच्छा, एक और चीज नोट करने वाली है, क्वेश्चन इज नॉट अबाउट नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट एज सच, इट इज अबाउट नॉन अलाइनमेंट एज अ इंडियाज फॉरेन पॉलिसी। हाँ एग्जैक्टली। और दूसरा अगर आप क्वेश्चन कर रहे हो तो क्वेश्चन को अगर आप पढ़ोगे, क्योंकि मैंने भी क्वेश्चन एक बार में पढ़ा, मुझे सीरियसली समझ नहीं आया क्वेश्चन एक या दो बार में बिकॉज मुझे ऐसे पढ़ना पड़ा। नॉन अलाइनमेंट वाज लिटिल मोर देन नेशनल स्ट्रेटजी। नेशनल स्ट्रेटजी बोल दिया तो यहाँ पे नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट नहीं है, नॉन अलाइनमेंट है पहली बात, इसलिए मैंने स्ट्रेटजिक ऑटोनॉमी वर्ड यूज किया था। सेकेंडली पहला पार्ट तो ये हो गया, नॉन अलाइनमेंट वाज लिटिल मोर देन नेशनल स्ट्रेटजी, समझ आ गया, ऑन द पार्ट ऑफ मेटेरियली वीक इंडिया। सेकंड पार्ट ये हो गया। और थर्ड पार्ट में टू मैक्सिमाइज इट्स इंटरेस्ट इन विद द बाइपोलर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ग्लोबल पावर। तो ये तीन पार्ट्स में अगर आप क्वेश्चन पढ़ोगे तो आपको ज्यादा इजीली समझ आएगा क्वेश्चन वाला। अच्छा, एक चीज मुझे मतलब इसमें समझ आती है, टुवर्ड्स द कंक्लूजन वी कैन डेफिनेटली राइट एस जयशंकर वर्ड्स जो है ना, कि इंडिया हैज लेफ्ट द हेजिटेशंस ऑफ द पार्ट एंड टुडेज इंडिया इज नॉट अ मटेरियली वीक इंडिया, इट इज अ मच मोर स्ट्रॉन्गर इंडिया, द सेवेंथ लार्जेस्ट है जो भी है ना इकोनॉमी है, सेवेंथ लार्जेस्ट पॉपुलेशन है, थर्ड या फोर्थ लार्जेस्ट पीपी की टर्म्स में इकोनॉमी है। तो ये सब चीजें अपन लिख के ऐसा लिख सकते हैं ना कि टुडेज इंडिया इज नॉट अफ्रेड ऑफ अलाइनिंग विथ एनीबडी, तो इंस्टेड ऑफ नॉन अलाइनमेंट इंडिया शुड गो फॉर, एज जयशंकर सेज, मल्टी अलाइनमेंट एंड इश्यू बेस्ड अलाइनमेंट। ऐसा कुछ कंक्लूजन फ्यूचरिस्टिक बहुत बढ़िया लगेगा ये। and also he said, okay, the NAM was a greater realism in policy. Am I audible? या इन अ वे मतलब वो उस टाइम In के हिसाब the से India way, he said that NAM tried to bring greater realism in policy. Then other word he used, one more word, cusp of change. It's a cusp of change. Yeah, you're right. Drishyam sir, can you please मतलब let other people who has joined speak, मतलब आपके पास एडमिन का एक्सेस होता है ना, वो म्यूट बटन को हटाने का उनके। हाँ, मैंने कर हाँ, दिया, अनम्यूट कर दिया काफी लोगों को, मैं कर रहा ओके हूँ ओके। डन। नहीं, व्हाट यू सेड वाज राइट, मतलब क्वेश्चन का इंटरप्रिटेशन ना दो स्कूल ऑफ थॉट्स के रिगार्डिंग घूम रहा है कि कुछ लोग कहते हैं ना कि वो जो सर ने बताया कि रियलिज्म एक्चुअल में वो आइडियलिज्म नहीं था, वो रियलिज्म था, क्योंकि इंडिया की उतनी उस टाइम हैसियत नहीं थी कि वो उतना मतलब स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को ट्रेड करके किसी के साथ वो बनाए, अलायंस बनाए। यू राइट। तो Hello, can I कमेंट, come in? यस प्लीज कम अगेन, मैं समझ नहीं पाया Yeah, आपने क्या कहा। yeah, Ajit here. Actually, after reading the question 2-3 times, if we focus on the word little more,
to me it seems like it's actually asking. Generally, we see it as a realism. Yes, it is, but it seems to be little more than that. So if you read the question, it's actually saying non-alignment was little more than a rational strategy on part of. So if we're saying yes, it was a rational strategy, but it was little more than that. So I think the crux of the question seems to be like, yes, we have to talk about it was India's realism, basically, but then there was also certain parts of idealism in it, like because of the what we call it, India's struggle for freedom and all those things, and third was solidarity and all those things. We can also talk about all those issues in this question. Yeah, Nehruvian strategy of मतलब ज़्यादा भरोसा करना. Yeah, Be leader in the third world country. yeah, in some way it's like that. So the last part which remains is comment. So in comment you have to put forward your point of view. So would anyone like to ponder upon that part in comment section? What you would like to add on this comment part? आई थिंक जो अभी सर ने यहाँ पे बताया ना कि वी हैव टू मोर फोकस ऑन वर्ड लिटिल मोर, तो उसको कंटेक्स्ट में रख के वी कैन हैव अ बैलेंस कंक्लूजन की दैट इट वाज अ रैशनल, आल्सो इट आल्सो हैड द आइडियलिस्ट नोशंस आल्सो. ऐसा इस लाइन पे कंक्लूड करेंगे तो काफी सही जाएगा. ओके, मतलब सिमिलर टू दिशम सर की ऑप्टिमिस्टिक कंक्लूजन देना था, यू सेड राइट? आई वुड से ना, जो मैंने एक्चुअली कंक्लूजन बोला था ना, इट वाज एक्चुअली अ कमेंट इन द वर्ड्स ऑफ एस जयशंकर एज वेल एज माय ओन वर्ड्स ऑफ इट. तो हम लोग मतलब जो अभी देव सर ने बोला ना, वो थोड़ा सा बैलेंस कर सकते हैं कि जो नॉन अलाइनमेंट था वो रियलिस्टिक भी था, आइडियलिस्टिक भी था, एंड बहुत सारे अलग अलग कैलकुलेशन भी थे, ऐसा बोल सकते हैं. एंड देन आफ्टर दैट बैलेंस्ड रिमार्क्स वी कैन अगेन गो एंड से कि फ्यूचरिस्टिक कुछ बोल सकते हैं इंडिया के बारे में, कि आज का इंडिया बहुत अलग है उसके उस जमाने के जो मैंने बोला वो सब. We can talk about NAM 2.0 also. Like non-alignment was India's grand strategy and it's still India's grand strategy. Not necessarily it is still India's grand strategy if you say so, but there is little scope in it adding. But yeah, you can, but there is not little scope. मतलब ये statement में ज़्यादा validation नहीं है कि अभी भी NAM को हम follow करते हैं, क्योंकि बहुत सारे scholars हैं जो कह चुके हैं ऐसा. मतलब सी राजामोहन के काफी critical views हैं NAM के लिए. Yeah, but एक्चुअली NAM यू आर राइट. 2.0 मतलब is जो about नहीं, जो एस ने बोला है ना, engaging with multiple alignments. It's about engaging with multiple alliances, not one. Yes, so NAM 2.0 is basically what we are doing now, right now. मैम सही बता रहे हैं एकदम. अरे एक सेकंड, मतलब देखो कंक्लूजन में तो ऑब्वियसली NAM 2.0 हम नहीं डालेंगे, बट देन जो रेफरेंस टू NAM 2.0 वाज एक्चुअली गुड बिकॉज इट शुड हैव बीन देयर इन द आंसर. कहीं ना कहीं डालना पड़ेगा NAM 2.0 को हमको. एंड NAM 2.0 is just a document where 10 to 12 scholars came together and they formulated कि भाई इंडिया का पॉलिसी आगे कैसा होना चाहिए. तो इट्स अ वेरी ब्रॉड एंड वेरी ग्रेट, मतलब क्या बोलते हैं ना, बड़े बड़े आइडियाज बस है उसमें. Yeah, C. Rajamohan and Sunil Khilani. करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, बट हम थोड़ा सा बाहर जा रहे हैं बिकॉज नॉन अलाइनमेंट की बात हो रही है, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट की बात हो रही है. सेकेंडरी डॉक्यूमेंट वाज नॉन अलाइनमेंट 2.0. आई टोटली एग्री कि हम उसको मेंशन कर सकते हैं, बट आल्सो यहाँ पे जो पूछा जा रहा है इसमें स्पेसिफिकली बोला गया है कि नॉन अलाइनमेंट वाज अ लिटिल मोर देन. तो पास्ट की बात पूछी जा रही है, पास्ट में क्या हुआ है. अगर हम अभी के हिसाब से लिख भी रहे हैं तो जो पॉइंट मुझे मतलब अगेन करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, ये मुझे लग रहा है मेरा इंटरप्रिटेशन हो रहा है ये वाला. सो व्हेन जब ये पूछा जा रहा है कि नॉन अलाइनमेंट वाज अ लिटिल मोर देन नेशनल स्ट्रेटजी, तो ये पास्ट की बात करी जा रही है. इंडिया उस समय कैसा था, नेशनली हमने क्या किया है, हमारे इंटरेस्ट कहाँ पे मैक्सिमाइज करे जा सकते हैं और हमने कैसे उनको प्ले करा है. तो अगर कमेंट की बात है तो एक एमके नारायण का था जिसमें उन्होंने फॉरवर्ड लुकिंग में कहा था कि नॉन अलाइनमेंट शुड बी सीन एज अ स्ट्रेटजी जहाँ पे हम थर्ड वर्ल्ड कंट्री से रेजोनेट नहीं कर रहे हैं. हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि हम जो है उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारे पास और भी टास्क हैं जो हमें फुलफिल करने हैं, जहाँ पे इंडिया के अपने इंटरेस्ट हैं, जो स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी जो हमने एक वर्ड यूज किया हर जगह पे, उससे रेजोनेट करें, ना कि थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज से. सो प्लीज मैं तो यही बोलूंगा कि इसमें नॉन अलाइनमेंट और नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट कई बार हम लोग इंटरचेंजेबली यूज कर लेते हैं. मेक श्योर कि वो एक साथ हम लोग इंटरचेंजेबली यूज ना करें उसको. और डॉक्यूमेंट वाज नॉन अलाइनमेंट 2.0, इट वाज नॉट नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, वो अलग हो जाता है फिर.
अच्छा ठीक है, एनीवेज आई थिंक काफी ज्यादा कंफ्यूजन है. द क्वेश्चन सीम्स टू बी एक्चुअली ट्रिकियर वन. इट्स नॉट एज स्ट्रेट फॉरवर्ड एज इट सीम्स टू बी ऑन द फर्स्ट रीडिंग. Actually, total Drishyam can be included. I mean, in the conclusion part, we said that India adopted this graduate autonomy as because of the changing geopolitical calculus from the non-alignment movement. Once they adopted because of the initial part. Okay, the question what they're demanding, and the later part, the strategic autonomy is because of the changing geoeconomic nature, geopolitical nature, and the interest of India. It is as long as we are limiting the geopolitical change, the geopolitical situation with respect to the bipolar distribution of global powers. Like a bipolar world की बात कर रहे हैं आप इस क्वेश्चन के कंटेक्स्ट में. We are not talking. I mean, we are not hesitant. Even Jio Shankar said we are not hesitant to. I mean, we are past resistance. We are gone. अच्छा guys, 15 minutes are over. Shall we move on? Actually, we Sure. have. Sure. Yeah, I have one sure. point. Go on, move it actually. सर क्वेश्चन में कंफ्यूजन ज्यादा होगा. एक बार थोड़ा क्वेश्चन को पूरा कंक्लूजन में मतलब कैसे इंट्रो देना है, क्या कैसे करना है, वो पूरा बता देते. अरे ललित सर 15 मिनट हो गए, वही तो डिस्कस कर रहे हैं यार. नहीं, डिस्कस तो कर ही रहे हैं. मतलब कैसे इंट्रो देना है, क्या बीच में कैसे वो करना है, एक बार बता देते. Putin sir, please summarize if you can. ओके सो जैसे क्वेश्चन में आप लोगों को पता है कि नॉन अलाइनमेंट के बारे में पूछा, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट के बारे में नहीं. सो आपको नॉन अलाइनमेंट की आइडियोलॉजी को सामने अगर इंट्रोडक्शन में पोर्ट्रे करना है तो आप नॉन अलाइनमेंट की आइडियोलॉजी को इंट्रोडक्शन में पोर्ट्रे कर सकते हो. उसके बाद फिर आपको एक डिबेट टाइप का फॉर्म करना है जहां पर आप बताओगे कि कुछ लोग जो परसीव करते थे नॉन अलाइनमेंट को एज अ नेहरूवियन आइडियलिज्म या फिर ऐसा कुछ की हाइपोथेटिकल सिचुएशन के हिसाब से यूएन के साथ कनेक्ट करके बोलते थे. तो प्लीज आप माइक बंद कर लीजिए क्योंकि रबल आ जाता है बीच में, नॉइस आ जाता है. तो यू कैन कनेक्ट विद दैट कि एक आइडियल स्कूल ऑफ थॉट था और एक रियल स्कूल ऑफ थॉट था जो बताता था कि नहीं, नैम वाज मोर देन आइडियल थॉट. इसमें स्कॉलरली व्यूज आपको अगर आप इंटरनेट के साथ थोरो हैं न्यूज़पेपर के साथ तो न्यूज़पेपर पे ही मिल जाएगा आपको. इसमें आप लोगों को ये ध्यान रखना था कि आप लोगों को डाइग्रेस नहीं करना था नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट पर. नॉन अलाइनमेंट एज आइडियोलॉजी मतलब नॉन अलाइनमेंट एज अ फिलॉसफी जो भी बोले, आइडियोलॉजी उस पर फोकस करना था. रेलेवेंट व्यूज जो है वो आपको एस जयशंकर की बुक से भी मिल जाएंगे और न्यूज़पेपर जो मैंने बताया न्यूज़पेपर से भी मिल जाएंगे. आखिरी में कमेंट पार्ट था, कमेंट पार्ट को आप एस जयशंकर के व्यू के साथ एक ऑप्टिमिस्टिक एंड दे सकते हो नॉन अलाइनमेंट एज अ पॉलिसी के बारे में. अगर आप चाहें तो नॉन अलाइनमेंट 2.0 की आइडिया मतलब ऐसा नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट पे मत लिखिए, 2.0 जो डॉक्यूमेंट आया था उस पे लिख सकते हैं आप. या फिर कोई एक अच्छा मटेरियल मेरे पास है, स्ट्रेटजी फॉर अ वर्ल्ड अड्रिफ्ट, सीपीआर का डॉक्यूमेंट था, उसमें होलिस्टिकली उन्होंने कवर कर रखा था, उससे आप कंक्लूड कर सकते हैं. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन. Okay, I'll read the next question. The 6B. Examine the geostrategic points of contention in bilateral relationships between India and China. अच्छा, इस फिर क्वेश्चन से क्या समझ आता है आप लोग को? Sorry, sir, your voice was not clear. Please repeat. इस क्वेश्चन से क्या समझ आता है? What do you guys understand from this question? To my understanding, they are pointing out. They want us to point out the फलाना locations और फिर इसको एग्जामिन करना है. जियो स्ट्रेटेजिक पॉइंट्स की बात की है ना, जैसे कि एक लद्दाख में वो जो मिलिट्री क्लैश हुआ था उसको एक डोकलाम को लेकर के बात कर सकते हैं और फिर तवांग रीजन को लेकर के भी बात कर सकते हैं. नो एक्चुअली वो आप वो या इसमें तीन लिख सकते हैं, बॉर्डर का और फिर आगे इकोनॉमिक और डिप्लोमेटिक का. इंडो पैसिफिक रीजन में जो विवाद चल रहा है उसको भी लेके बात कर सकते हैं, वहां पे विवाद चल रहा है. एक्चुअली आप कंटेंशंस को ना कॉन्फ्लिक्ट के साथ मिक्स कर रहे हैं. व्हाट आई थिंक इज जियो स्ट्रेटेजिक मतलब क्या होता है, जैसे चाइना ऐसा बोलते हैं पाकिस्तान इज स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड, ठीक है. जियो स्ट्रेटेजिकली जब बोलेंगे ना तो जियोग्राफी को रिप्रेजेंट करता है वो. तो जैसे आप जियो स्ट्रेटेजिक पॉइंट्स ऑफ कंटेंशन ना आप अपने आप को लिमिट डोकलाम ओकलाम से नहीं कर सकते, वो एक फ्रंट रहेगा कि जियो स्ट्रेटेजिक ब्रॉडर कंटेक्स्ट. हाँ, एंड टू टेक इट मच मोर ब्रॉडर कंसेप्ट, इसमें आप स्ट्रेट ऑफ मलक्का को भी लाएंगे, साउथ चाइना सी को भी लाएंगे, मतलब एक आईओआर रीजन. जी, आईओआर रीजन को भी लाएंगे जहां पर इंडिया की स्ट्रेटेजिक डोमिनेंस ऑल मतलब अफ्रीका भी लाएंगे.
जी, मतलब ये जो आप लिमिट कर रहे थे ना, कंफ्लिक्ट और कंटेंशंस दोनों को मिक्स नहीं कर सकते आप। जियो स्ट्रेटेजी का मतलब जियोग्राफी से रिलेटेड यूरोप है भी और लाएंगे। हाँ सर, तो सब लाएंगे। रेवेंज ऑफ और वाले कितना लाएंगे? कंसेप्ट को एक्चुअली ना वॉइस ब्रेक हो रही है, प्लीज सभी लोग माइक बंद कर लीजिए और जो बोल रहा है सिर्फ वो एक बार बोले तो ज्यादा सही रहेगा आई गेस। Even we have issues with even it's an adversary, but we never said that China is our adversary. Even Pakistan, we did same did with Pakistan. Yeah, sorry to interrupt. Can somebody please introduce this question? I mean, how do we actually introduce this question? मतलब instead of going direct to the point, how do we have structure of the question? Intro में क्या रहेगा? Can we say about the Panjshir? Can we got the Panjshir? Something Alfred T. Mahan's argument with respect to revenge of geography has shifted from Eurasia to Indochina region. Then we can go ahead with geostrategic points of contentions from global perspective. And I do not know whether we should draw a small map with respect to highlighting the points in this particular questions, but in because of its optional nature and theoretical aspects. But otherwise, I think in GS perspective, we could have had. Please recommend your opinion on it. Please, should we draw a map in this particular aspect? Okay, so for introduction, I would have used the book of a great man, शिव शंकर मेनन। उनकी बुक आई थी इंडिया एंड एशियन जियोपॉलिटिक्स, द पास्ट एंड द प्रेजेंट। उसमें उन्होंने बताया था कि मतलब जो चाइना, जियोग्राफिकल स्पेस की मैं बात कर रहा हूँ, चाइना जो है वो एक तरीके से जियोग्राफिकली जो है वो ऑलरेडी यूएस के चेन में बंधा हुआ है और एल्फ्रेड टी महन की फिलॉसफी को यूज करके वो जियो स्ट्रेटेजिक कंटेंशन क्रिएट करता है इंडिया के साथ। ये उनकी बुक से ही मैंने उठाया, ऐसा कुछ मेरा ज्ञान नहीं था। फिर उन्होंने बताया, फिर मतलब उनका बहुत डिटेल्ड बुक है वो, इफ यू गाइस लाइक यू शुड रीड इट। सो आई वुड हैव स्टार्टेड विद द व्यू ऑफ एम्बेसडर वो तो शायद बार्गेनिंग पावर बढ़ाने के लिए है ना ऐसा। जो ये मतलब वो स्टार्ट मतलब कॉन्टेक्स्ट तो मिल गया मुझे कि जियोग्राफिकल कंटेंशन क्रिएट हो रही है क्योंकि उसका राइजिंग पावर है। उन्होंने एल्फ्रेड टी महन के साथ मतलब की आइडियोलॉजी को यूज किया और ये तो उन्होंने खुद बोला है शिवशंकर मेनन ने। तो स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड में जियोग्राफिक में उसको यूटिलाइज कर सकता था उस पॉइंट को, इसलिए मैंने ऐसा बोला। Okay. Sir, the way I would introduce is that एक डेविड मेलोन की शायद बुक में इंडिया चाइना जो चैप्टर है ना, उसमें एक सब हेडिंग है कि कैन द टू टाइगर्स शेयर द सेम माउंटेन। तो ये मतलब आई वुड कोट डेविड मेलोन एंड द बुक एंड दिस एंड राइट कि दिस स्टेटमेंट हाईलाइट्स the geostrategic tensions between India and China, and then I would go on to start off with historical something. नहीं सर, बहुत बढ़िया। मतलब ये बिल्कुल जो जगह पे तीर मारते हैं ना उस टाइप का है, मतलब वो उसी जगह को बोला वो। ठीक है, तो मतलब एज वी डिस्कस देयर आर 3-4 इंट्रोडक्शंस, बहुत अलग अलग है एंड अच्छे हैं मतलब सारे। अच्छा, किसी को एक जियो स्ट्रेटेजी का डेफिनेशन दिया हुआ है, देयर इज सम स्कॉलर हु हैज प्रॉपर्ली डिफाइंड इट इन वेरी गुड टर्म्स। किसी को पता है क्या? यहाँ पे एक रेडजर का वो था शायद, हालांकि मेरे को वो सही लगेगा या नहीं लगेगा। उन्होंने बोला था ना, स्टेट इज लाइक एन ऑर्गेनिज्म, इन ऑर्डर टू सरवाइव इट शुड एक्सपैंड। ठीक है, जा सकते हो। Can we bring some realism? I mean, Kautilya views of organic state. I mean, the neighbor is your greatest enemy, like. Okay, all right. So can we move to body now after introduction? So the way I would approach is intro कुछ डालेंगे अच्छा सा interesting, then some historical context of India China, and then I guess जो statistics दे सकते हैं ना, 4,000-5,000 किलोमीटर का बॉर्डर है, and then जो पॉइंट्स ऑफ कंटेंशन बहुत सारे लोगों ने बताए, तो कैन वी जस्ट समराइज बोन ऑफ कंटेंशन अभी जियो स्ट्रेटेजिकल क्या क्या है? क्विकली बोल दो चलो फटाफट। In our previous ambassador Parsad said, even India have a intention to resolve the strategic issues with, I mean, especially the border issue disputes with China. China have no intention to resolve it. Can we quote that thing?
ठीक है वीकेंड, बट तो बहुत नैरो नहीं चला जाएगा अगर सिर्फ अपन बॉर्डर की बात करते रहे हैं तो। बॉर्डर के अलावा जियो स्ट्रेटेजी को अगर बोन ऑफ कंटेंशन बोलते हैं तो आई थिंक We can मल्टीपल also फ्रंट्स mention बॉर्डर। that the statement from the Art of War, Nudu, Yeah, can I because give he my says that terrain interpretation? matters because it's a central element of and strategy. Concentration of the ground. Maybe in two paragraphs we can discuss about India-China border with respect to Hot Spring, Galwan Valley, Karakoram. Also, we can add CPEC that passes through POK, and we can talk about this Doklam as well as Tawang area. So in these two paragraphs, we can mention these points, and more apart from that, we can go ahead with Indian Ocean region and Malacca Strait, and we can write about this dilemma, security dilemma in Indian Ocean region. Then we can go ahead with South China Sea, where India has a strategic interest and strategic economic interest with respect to free and open movement of shipping lanes or communication lane. So Then these we can also add string of pearls policy of China, and इसको counter कैसे करता है इंडिया? Quadrillion or diamond? Sagar. Something. By Sagar. Diamond of कुछ तो है वो. Diamond. Something is there. I don't remember that. These two keywords we can use. String of pearls versus इंडिया का ये. And एक और लाइन काफी इंटरेस्टिंग है, मैंने थोड़ी देर पहले भी बोला था वो चीज. तो व्हाट वी कैन राइट कि आफ्टर पाकिस्तान जो पोर्ट बना है ना, तो चाइनाज मलाक्का डिलेमा हैज एंडेड whereas India's Gwadar dilemma has started. ये काफी मतलब इंटरेस्टिंग लाइन किसी स्कॉलर ने बोली थी. तो दिस इज ऑल्सो जियो स्ट्रेटेजी की बोल सकते हैं. एक और कोट कर सकते हैं वाजपेयी का, नो वन कैन नॉट चेंज फ्रेंड्स बट नॉट वन कैन चेंज फ्रेंड्स बट नॉट नेबर्स. कंटिन्यू कोई. Yeah, like to me, actually, these questions, like मैं I कुछ would कह have रहा been. था sorry. जी, Even we have contention in the geostrategic point. I'm so sorry to cut you. Okay, Nepali, please. Nilesh, your voice is actually very low. अभी क्लियर आ रही है वॉइस? हाँ. One minute, I'll rejoin. Your voice is good. It's good. Can we also discuss about India's increasingly interest with respect to France in case of Reunion Island and in this क्या कहते हैं Galapagos, there is a Diego Garcia Island with respect to UK and USA. Definitely. Yeah, and We can also write about Africa. Yeah, we can mention about. So one question I want to ask. Yeah, somebody else is trying to speak. I think. कौन था? Please go ahead and make it. Israel, I think. Yeah. Hello. A कौन है? बोलो. Yeah. See, how I interpreted this question was when you talk about geostrategic points of contention in bilateral relation. To me, there's this quote about how US wants a unipolar world and multipolar Asia, and India wants a multipolar Asia. In that sense, like how China wants to like expand its influence over almost all of Asia and the world, whereas India wants to contain it. So then we have this China trying this strategic containment of India, and India trying to like prevent it and trying to an extent strategic containment of China. So we have all this Galwan Valley, those are direct points of friction, but we have like in Afghanistan also we have issues, and Central Asia. Correct. All these issues impact India. These are all geostrategy include everything. And then we're moving for like South Asia, then we'll also have to include, and in the solution, what India is doing, we can use like Quad, how India is bringing outside paths to contain China as one of like India's strategy, and we can compare it with China's strategy, how it is trying to contain China, like its relationship with what we call it, Pakistan, and what it is doing in Sri Lanka, what India is trying to do with like, recently we came to know about India selling BrahMos to Philippines, India's relations with Taiwan, Mongolia, and all those things. So I would like look at the question in that sense.
Any comment? Nice. It's a good That's it. interpretation. I mean, even we have never tried to interfere in each other's internal affairs, but China is interfering in the Gezi Kashmir, and now we are interfering with the Tibetan issue and Taiwan issue. Okay, they have hesitation in that part. Even we are trying to contain with even China's grand strategy is contain India because they have the main rival in the future and even before the independence of us. Brahmaputra River, that is also bone of contention. मेरी अभी वॉइस क्लियर आ रही है? Better है. Yes. हाँ, so मैं ये कह रहा था जब हम जियो स्ट्रेटेजिक पॉइंट की बात कर रहे हैं when we are talking about the geostrategic points, तो इनिशियल में we know मिलिट्री वाले there are so many fronts in the Indian Ocean, there are so many fronts along the borders. So first of all, the geostrategic border contention comes from the border disputes that we have with China. Secondly, China's alignment with Pakistan and with the South Asian nations, it is predominantly challenging the New Delhi's domination, which we have exerted for decades. So ये second level पे bone of contention होता है geostrategic level पे. Thirdly, बहुत important जो point हम मिस कर रहे हैं वो है कि बीजिंग या चाइना they are influencing the whole world by influencing the international organizations like United Nations, while at the same time they are asserting China is asserting itself by establishing new organizations जैसे एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर AII भी है, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक. तो यहाँ पे चाइना इज चैलेंजिंग इंडिया इन द मल्टीलेटरल फ्रंट्स. एंड फाइनली जब हम बात कर रहे हैं अफ्रीका के बारे में जहाँ पे चाइना का बहुत ज्यादा रोल है, सो इसको अगर समराइज करें चाहे वो अफ्रीका में हो चाहे साउथ अमेरिका में हुआ, तो चाइना इज इन्फ्लुएंसिंग द होल वर्ल्ड विद इट्स इकोनॉमिक पावर, जो कि अगेन इंडिया के लिए काफी ज्यादा डिटर्मिनेंट है. तो जियो स्ट्रेटेजिक पॉइंट में ये 4 पॉइंट है जो हम इकट्ठे लिख सकते हैं एक बार में. और एट द सेम टाइम व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट जियो स्ट्रेटेजिक बॉर्डर ऑफ कंटेंशन, तो यहाँ पे इंडिया का क्या रिस्पॉन्स रहा है इन पॉलिसी को लेके, इंडिया ने क्या किया है. फॉर एग्जाम्पल इंडिया ने फर्स्टली अपनी मिलिट्री को डेवलप किया है उस हिसाब से, लाइक वी हैव सीन ओवर द लास्ट 2-3 years we had so many confrontations and we have been developing our military in the subsequent ways. Secondly, abhi recently we have excessively invested in the African nations, so we are trying not at that level but we are trying to counter the Chinese policies by investing more into the African corridors. Thirdly, जो हमारी मतलब पहले एक बोला जाता था इंडिया हैज अ परव्यू जहाँ पे वी आर पेइंग मोर लिप सर्विस एंड वी आर डूइंग सो लेस, तो वहाँ पे इंडिया ने काफी इंप्रूवमेंट किया है. तो पॉलिसी रिस्पॉन्स में ये सारे के सारे आ सकते हैं. दीज आर सम ऑफ द थिंग्स दैट वी कैन सी व्हेन यहाँ पे क्योंकि लिखा हुआ है एग्जामिन द जियोस्ट्रेटेजिक एक पॉइंट्स ऑफ कोट है यहाँ कंटेंशन. पे आपके अफ्रीका रिलेशन पे कि चाइना डज मोर बट इंडिया डज इट बेटर. आई एग्री. I mean, एक और can we कोट है include सी the राजामोहन. हरे 1 सेकंड. एक और कोट है सी राजामोहन कहते हैं कि इंडिया प्रोमिसेस बट चाइना डिलीवर्स. तो आई थिंक वी कुड जस्ट रिवर्स दिस एंड राइट इट इन कंक्लूजन एज वे फॉरवर्ड कि इंडिया मस्ट डू मच मोर देन टॉकिंग एंड इम्प्लीमेंट थिंग्स ऑन द ग्राउंड. राइट. Can we But he include, China's strategy of, a vaccine strategy, diplomacy, especially in the Indian Ocean region and Africa, to gain access to and to build the Chinese century. But India tried to counter it with the help of Sri Lanka, with the help of Japan, or with the help of EU they are building. Correct. We can do that. Guys, I think we should move on. काफी टाइम हो रहा है, 15 मिनट हो गए, 2 क्वेश्चन, 30 minutes हो गए almost. We are discussing 2 questions. Shall we move on? Just one question I want to ask in this question. Is it advisable to draw diagram of world map in order to highlight the key points in this particular question? What would you say? I would have drawn it because वो मुझे ना एक एडवांटेज देता, मतलब मैं फ्लो नहीं तोड़ना चाह रहा, बट वो एक आई बिलीव कि मुझे एडवांटेज देता. प्लीज करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, बट मैं कंटेंशंस जो है ना वो पॉइंट करके लिखता, मतलब डायग्राम में पूरा नहीं लिखता, बट आई वुड हैव ड्रॉन इट द पॉइंट्स. ठीक है. Anybody wants to add anything on that? डायग्राम के बारे में एक बार सेटल कर लो डायग्राम का डिबेट. Anybody who has written mains, if you want to share. सही रहता है. छोटे-छोटे अपन उसमें मतलब ऐसे बता सकते हैं कुछ. It's better to add map. In the small size, GS type नहीं आते पेज में, छोटा सा बना सकते हैं. And we should move on to the next question. I guess. Shall I will read out the next question. Question number 6C. Write a brief analysis of ethnic conflicts and
cross-border migrations along India, Myanmar, and India Bangladesh borders. To match it with the syllabus, I have the syllabus with me. Paper number 2B, topic number 3D, इसमें आएगा इलीगल क्रॉस बॉर्डर माइग्रेशन. मतलब ये टॉप मतलब एग्जैक्टली एक्सप्लिसिटली मेंशन्ड है ये सिलेबस में ये क्वेश्चन. और इसका बैकड्रॉप आप ये बता सकते हैं कि म्यांमार में मिलिट्री coup हुआ तो वहां से भी क्रॉस बॉर्डर माइग्रेशन देखा गया. ठीक है, चिन कम्युनिटी वाले मिजोरम का एंगल दे सकते हैं. और बांग्लादेश का तो आप लोग सभी लोग अवेयर ही हैं कि मतलब रोहिंग्या वाले वहां से एंटर करते हैं. सो इसका ब्रीफ मतलब बैकग्राउंड अगर देखा जाए तो वो यही था. इसको इंट्रोडक्शन कैसे करेंगे? इसमें इंडिया म्यांमार भी, इंडिया बांग्लादेश भी है. फोकस इज ऑन माइग्रेशन, इमिग्रेशन, इलीगल इमिग्रेशन. यहाँ पे ह्यूमन राइट्स का इशू आएगा एथनिक कॉन्फ्लिक्ट्स में. इंट्रोडक्शन कैसे करेंगे? लाइक आई अटेम्प्टेड दिस क्वेश्चन इन एक्चुअल मेंस. तो मैं बताता हूँ कि इसको मैंने कैसे अटेम्प्ट किया. कि आई स्टार्टेड विद इंट्रो दैट Professor S.T. Muni says that South Asia has artificial boundaries of artificial political boundaries which leads to ethnic conflicts as well as ethnic movements. तो ये एक theoretical थोड़ा सा एंगल दिया. Thereafter I mentioned that in context of India is boundaries particularly with Myanmar and Bangladesh faces lots of movement of people because of ethnic cross-border relations as well as movement in due to push and pull factors of migration. फिर मैंने country specific बताने लगा. जैसे in this question also you all were discussing कि क्या हमें मैप बनाइए कि नहीं. मैंने तो 6B और 6C दोनों में मैंने मैप बनाया और मुझे लगता है कि it helps. क्योंकि आता है जनरली लोग PSIR में अगर आप बनाते हो तो एक न्यू पर्सपेक्टिव देता है एंड मच मोर कैन बी एक्सप्रेस्ड इन अ डायग्राम रादर देन राइटिंग इट इन वर्ड्स. फिर आई टॉक्ड अबाउट इंडिया म्यांमार पहले. तो उसमें सबसे पहले तो मैंने बताया कि एथनिक मूवमेंट्स है, फ्री मूवमेंट रिजीम है बिकॉज ऑफ विच देयर आर सो मेनी ट्राइब्स हु कीप ऑन मूविंग फ्रॉम वन region to another. And I also mentioned the greater Nagaland issue because of which Nagas consider that the parts of Myanmar also should be part of their territory. तो वो एक conflict create करता है. और साथ में there are so many insurgent groups who for strategic purpose keep moving, तो वो security threat भी create करता है. इस पे I was not able to bring any theoretical perspective as such. यही मतलब जो factual है वही बोला. I used a former ambassador to Myanmar. तो उनका नाम मैंने just mention कर दिया कि he mentions कि ये issue है. Then I moved to Bangladesh. तो बांग्लादेश में तो I mentioned that actually Bangladesh could be called was earlier called East Bengal. So in a way it is part of India itself and the border is artificial in nature. तो फिर उसमें मैंने तो एक तो बताया असम एजिटेशन और उसमें कैसे एथनिक कॉन्फ्लिक्ट्स हुए क्रॉस बॉर्डर माइग्रेशन के कारण, वो इशू को एक्सप्लेन किया. देन आई टॉक्ड अबाउट द रोहिंग्या इशू जो म्यांमार बांग्लादेश दोनों में हो जाता है. एंड thereafter in context of cross border migration the statements in India CAA these creates troubles in relation. Or thereafter in last I had hardly some space, so the last 3 to 4 lines I concluded that ethnic conflicts and cross border migration in such a pluralistic society is common. What it would require is a humanitarian approach with focus on resolving more initiative like one of border markets है या what we call is that movement of people through regulation border area development programs. So 3-4 initiative जो भी मेरे दिमाग में I don't know actually what I wrote actual examination में, लेकिन जो भी 3-4
पॉइंट है वो लिख के आई कंक्लूडेड दिस आंसर। यू हैव रिटन जनरसली गुड आंसर, मतलब आपने डायमेंशंस कवर किए और वो भी मतलब वो जस्टिफाइड है। जो आप थकान की वजह से शायद हो सकता है आप अभी रिकॉल नहीं कर पा रहे होंगे एग्जैक्टली, नो इश्यूज। मैं थोड़ा थोड़ा बस चेंज करता, जैसे आपने स्टार्टिंग तो बहुत अच्छी दी, मतलब वो हमें हिट नहीं कर रहा था, बट वो मुझे उस बारे में पता नहीं था एस डी मुनी वाले व्यू के बारे में। आफ्टर ऑल मतलब आपका आंसर काफी अच्छा था, मतलब अलग अलग मतलब आपने असल में स्ट्रक्चर वाइज भी बांटा है। पहले मतलब एक तरीके से एक बार डेल्ट किया आपने क्रॉस बॉर्डर माइग्रेशन बिटवीन इंडिया एंड म्यांमार, फिर देयर वाज अ पॉज ऑन दैट, एंड फिर इंडिया बांग्लादेश पे, मतलब काफी अच्छा सेग्रीगेटेड व्यू, ऐसा नहीं कि हॉच पॉच हो जाता है कभी कभी ज्यादा डेटा होने से। आई लाइक द आंसर, मतलब आई लाइक द स्ट्रक्चर। थोड़े थोड़े डिफरेंसेस रहते जो मैं Fit मतलब better Great the answer, Arya. historical perspective of this conflict, because we know that the British and Southeast Asia is the least integrated region. You already told about the Myanmar issues, the Rakhine issue, the Greater Nagaland, the Shan State issues, because they were ethnic conflict, and the migratory issues. So they are directly asking the migratory. So the NRC issue, you already caught. Yeah, I think it's a good attempt. What you done? In this question, I think we can quote one more scholar named Kishore Mehbubani. He is also a scholar with respect to India, Myanmar, and India, Bhutan. I mean India and South Asia and Southeast Asia relations. I think we can say that ethnic conflicts divide the otherwise well-connected region with similar interest. So, and it needs pluralistic and humanitarian effort for collective security and national interest in order for greater development, something like that. I think this scholar Kishore Mehbubani could have been added in this question. You can tell if it is right or you find it wrong or whatever it is. You can make your comment on it. भाई आर यू 100% नहीं, श्योर कि what वो किशोर you have mentioned, I मधुबनी think it नहीं is है? good enough, but it is the challenge is to think in that very perspective in the examination itself, because it is very challenging that you are writing a paper and simultaneously you are able to think, because it's not directly connected, no. So generally our mind only thinks about India, Bangladesh, or maybe you can think of larger perspective of South Asia, but it's a good perspective provided if we can bring it in actual examination. Like Just in this caution. question, I think the issues are settled. What could be done is that ways to handle it, maybe that could have been mentioned in a better way. So what could have been some of the ways in which it can be handled in better way? Can there be a theoretical perspective, for example, social constructivist school of thought in this particular aspect? And we can bring Suhasini Heather into it, whereby people to people contact. And there's a person, I don't remember, I think Suhasini Heather itself, who said that providing work visa to India, to Bangladesh, to people of Bangladesh can address the cross-border migration, ethnic conflict, as well as boost the India-Bangladesh relations. I think similar argument can be made for India, Myanmar also. I don't remember if it was Suhasini Heather herself or somebody else. But this particular aspect with respect to ethnic conflicts and cross-border migration has been made by some scholar. And I think that person is I social think school of thought. who cares who is that person? Yeah, the point is even examiner wouldn't know that who has said that. If you just mention the social constructivist view, that is good enough. No need to worry about scholar. Even we become the scholars at that moment. I think we can move on to next question. काफी discussion हो गया है. Very nice inputs. Okay, so we Next will move question on to the है. next question. Yeah, please carry let's on. move. Next question है question number 7A. Why South Asia is considered as world's politically and economically least integrated region? Explain. 20 marks का question है यार. बताओ. स्ट्रक्चर कैसे रहेगा कम से कम इसका बताओ, या फिर तो हाईलाइट इसमें यही है, पॉलिटिकली एंड इकोनॉमिकल दो अलग अलग पार्ट्स है, लीस्ट इंटीग्रेटेड प्रूव करना है.
डेटा से भी स्टार्ट कर सकते हैं. वर्ल्ड बैंक, there is a World Bank data that the intra South Asian countries trade is just 5% as opposed to ASEAN's 37% and Europe's 55%. Or we can say that political differences has took a dominant role rather than a collective interest with respect to human development in South Asia. मैंने तो इसमें जोग्राफिकल कॉन्टिनम इसे दिखाया साउथ एशिया को, बट मैंने पता नहीं फिर कंट्रीज क्यों बता दिया. बट मैंने इंट्रो में कंट्रीज भी बता दिया कि ये आता है ज़्यादातर साउथ एशिया में, एंड देन कि इट इज़ सराउंडेड बाय माउंटेन्स इन हिमालयाज और फिर ओशन, ताकि एक कॉन्टिनम दिखा के फिर आई स्टार्टेड कि ये लीस्ट पॉलिटिकली कनेक्टेड है. फिर की डिफरेंसेस बता दिया कि वी हैव नो स्ट्रगलिंग डेमोक्रेसीज ऑफ दिस नेपाल एंड पाकिस्तान, एंड इसमें फिर कि भूटान इज किंगडम, एंड दिस क्या बोलते हैं कि मैच्योर डेमोक्रेसीज ऑफ बांग्लादेश एंड इंडिया. फिर मैंने क्या बताया, या फिर मैंने इसमें दिखाया था कि सार्क का मतलब एक ही मल्टीलैटरल ऑर्गेनाइजेशन है, वो भी यूरी अटैक से काम नहीं कर रही है. देन और हाँ, फिर वो बिग ब्रदर वाला, एंड उसके बाद वाई इट इज़ हैपनिंग सो इज़ बिकॉज ऑफ कि आर्टिफिशियली ब्रिटिश ने हमारे बॉर्डर्स मतलब हम ओके हाँ, मैंने बोला कि शेयर्ड इथनिसिटी में ही प्रॉब्लम लाए करती है, बट उसको ब्रिटिशर्स ने फिर क्या किया कि आर्टिफिशियली डिवाइडेड कर दिया. एंड डिस्ट्रस्ट का दिखाया था मैंने, हाँ डिस्ट्रस्ट का पॉइंट. फिर मैंने इकोनॉमिकली लिखा, फिर इकोनॉमिकली में वही 5% वाला और ये सब, और फिर साफ्टा का नॉन इम्प्लीमेंटेशन, साफ्टा में नेगेटिव लिस्ट ज़्यादा है और साफ्टा में पैरा टैरिफ्स वाला. फिर मैंने शायद उसमें एल्डर ब्रदर वाला दिखाया कि एल्डर ब्रदर की तरह इंडिया हैज़ मच रोल, है ना. फिर उसमें मैंने एल्डर ब्रदर में से सुहासनी हैदर डाल दिया, चाहे वो किसी का भी हो. एंड देन शायद मैंने कुछ बस ऐसे ही कंक्लूड किया होगा कि इंडिया को बिगर रोल प्ले करना चाहिए, कि बस यही लिखा था. I think I have one point. I just thought of that right now. We can start with post-partition of British India. The South Asia region remains the victim of global political powers. We can start with this, and within this we can also add that first SARC remains divided because of terrorism issue, and then we can also add greater influence of China in contemporary context. इस dimension में भी we can add politically and diplomatically, and later on we can add economic dimension में with respect to that data, and we can quote कि tariff region is too high. I mean tariff is too high, and MFN status has also not been extended, and it remains divided on these lines. You can comment on introduction of this line. I mean, शुरू से ही South Asia region, since partition of India, I mean British India, South Asia remains divided. Okay, so I think in this question, no, we could also draw a contrast. The contrast is that South Asia is actually a subcontinent, which was historically a single region with good intra-regional trade. But in contrast to that, in the present scenario, as mentioned, as we have discussed, the trade is just about 5%, and SARC, the regional organization, is considered to be in the Nobody is limbo. audible, This we can Sachin, show. I think. Okay, is it audible now? Yeah. Yes, go ahead. So I said that in the show a contrast that actually South Asia was one part of one territory under British India, and it was one of the most integrated region in a way because of railways and all. But as of now, it is the least integrated region both politically and economically. In political dimension, SARC is considered as the
symbol of failure, and intra-regional trade is just about 5% as mentioned by World Bank. This could have been intro. And then as far as causes are concerned, at few points I won't repeat the same. Like one is the relative size of India, the asymmetry, the big brother attitude. That is a reason for distrust. Then there is a lack of complementarity, because all the countries, they produce similar kind of things. The third reason is that influence of China, which we are missing in somehow in recent times. China is turning out to be the bigger trade partner of almost all the countries in the region. So intra-regional trade has reduced. These are some extra points. Any other points if somebody could add? The unfulfilled promises of great power rivalries. I mean, during that power rivalry time, several promises made for artificial state. I mean, for states like in the Shan, in Myanmar, the Rakhine in the later part of the Myanmar, then separate in the Thailand cases. There are presence of research. I mean, there's insurgent groups, okay, ethnicity, and inner line permitted in Indian part, or a similar kind of agreement in, I mean, similar kind of things in the other part of. Can we include that? Okay. Any other points anybody wants to Here add? I think we could also mention the role of India Pakistan conflict, the two largest power in the region, who are arch rivals since 1947. So that creates problems for the entire subcontinent. And also the factor of this illegal trading, because the size of illegal trading is considered even more than the legal one, so that creates problem. So these are some factors we could have added. I guess we have discussed almost all the parts of this answer. Shall we move on to the next question? Okay, here like there are why South Asia is considered a least integrated and is 20 marker. Should you think that in maybe 1 page or 3x4 page we should also mention how it could be made politically and economically integrated? Yes, I think we should go ahead with that. And we can also quote Dr. Manmohan Singh's argument in this, to have breakfast in Amritsar and have lunch in Lahore and dinner in, ऐसे करके कुछ argument था. Yeah, it was like that. Just a few points, like maybe someone before that, talked about that Atal Bihari Vajpayee statement, we can change friends, we can't change neighbor. That can be used like in the conclusion. And one more point I think we could add somewhere is like comparison, we could compare SAARC with maybe EU and ASEAN, and how, for example, EU had a much bloody conflict, like France, Germany, World War and everything, but now they are much more united compared to our region. So maybe this comparison, without the history, we could use either in the body or maybe in the concluding part. I think instead of EU, there's a scholar who wrote book ASEAN Miracle, and he asked, he advised South Asia to learn for ASEAN, which is culturally diverse and has too many internal conflicts, yet remains one of the most successful intergovernmental, inter-regional organization. So similarly, South Asia can also learn from it with respect to ASEAN. Moreover, I think we should also add Sri Lanka in this question. Recently, Sri Lanka has also been engaging in India and China, and there is a disintegration or the difference of opinion with respect to integration in South Asia. ठीक है, इसको कंक्लूड कैसे करना है? वे फॉरवर्ड से करेंगे क्या? क्या क्या कर सकता है?
how do you integrate उसके बारे में क्या सर? Jayashankar said that South Asia being the center of Indian Ocean. So if India want to be, I mean, if we are looking for a Asia century, if we want to integrate, not only benefit of the region, but also benefit for the whole world. I mean, it's an optimist sense because the spillover effect of here also affect other part of the world, even greater power rivalry, even between India or even I mean US and China. It's also affecting the South Asia. Hello guys, I have just conclusion part में I have some submission. So I think इसको हम 2 part में we can conclude in politically. Politically just two or three points we can add. Like जो हमारे politically summits होते हैं, so that new infusion has to be made or efforts has to be made from all these countries. जो भी हमारे साख वगैरह हो रहे हैं रेगुलर नहीं हो पा रहा है, so I think that we can put and particularly जो एक स्टेबिलिटी नई रीजन में बन पा रही है लाइक पाकिस्तान हो गया, अफगानिस्तान हो गया, सो दैट इज जब तक वहां पे पॉलिटिकली स्टेबिलिटी नहीं होगी मेंबर स्टेट में, आई डोंट थिंक दे कैन फोर्स सी कि एक पॉलिटिकली एक स्टेबल रीजन बन पाएगा. एंड इकोनॉमिकली जब तक हमारा एक इन्वेस्टमेंट नहीं होगा किसी भी एक रीजन को इंटरकनेक्टेड में, तो आई थिंक कंक्लूडिंग पार्ट में वी कैन पुट ऑन इकोनॉमिकली दिस रीजन हैज टू बी इंटीग्रेटेड नॉट फ्रॉम द इंडियन सब कॉन्टिनेंट पॉइंट ऑफ व्यू बट अक्रॉस म्यांमार से लेकर वो आप पूरा साउथ ईस्ट एशिया तक. तो आई थिंक 2, 3 और 4 पॉइंट्स वी कैन ऐड इन दैट वे. दैट्स फ्रॉम माय साइड. थ्योरेटिकल आइडिया भी ऐड कर सकते हैं. देयर इज अ स्कॉलर ऑफ की थ्योरी, I don't remember, not able to remember, functionalist approach whereby scholar argued keep the politicians out, and we can add that let people. David Mitrani. I think David Mitrani, he argued that let the people unite and then they will force the political leadership as well as to unite and grow the economic, enhance the economic integration of the region. We can add social. इसी में शायद एक और है ना, पीस बाय पीसेस वाला, कि जो लीस्ट कंटेस्टेड जो चीजें हैं उसको पहले कर लो एंड जो ज्यादा कंटेंशियस है उसको बाद में कर लो, ऐसा कुछ. Yeah, that's what my next point was. So I think this way we can also add, because it's a 20 mark question, we can add that point also. एंड एक और है जैसे सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच भी यूज कर सकते हैं, जैसे जो करतारपुर कॉरिडोर वाला है, वो भी एक पॉइंट है. ठीक है, आई थिंक वी शुड मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ. यस सर, मतलब काफी टाइम जा रहा है, विल मूव फास्टर. यस सर, वे फॉरवर्ड ही कंक्लूजन होना चाहिए, सभी का ये कहना है, राइट? हाँ, करेक्ट. ठीक है, अगेन यार मतलब आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू कीप योर रिस्पॉन्सेज शॉर्ट, बी प्रिसाइज टू द पॉइंट एंड डायरेक्ट. ज्यादा मतलब ठीक है, वी आर ऑल हैव स्टडीड एवरीथिंग, डायरेक्टली बोल दो जो भी है. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करना है अपने को? क्वेश्चन 7B है, how do the constituent states influence the foreign policy making process in India? तो ये सिलेबस के कौन से टॉपिक से रिलेट करता है? Like in this question, we can start from federalism, that India being a federal country, though foreign policy comes under the domain of union government, but still its implementation has a lot of issues related to the powers of state governments. Then we could mention that you can mention the keyword para-diplomacy, and recognizing the importance of states. Even a para diplomacy division in MEA has been established. Then we can talk about the main example, Bangladesh in context of West Bengal in context of Bangladesh, and Tamil Nadu in context of Sri Lanka. We all know the issue, so I think I shouldn't explain that. In context of Nepal also. And UP also, UP, Bihar both, particularly Madhesi issue in context of Nepal. So these are three, and also Punjab. For example, we can give Kartarpur corridor in context of Pakistan. So, and also this Khalistani movement. So these are main 4 points. We know all the elaboration, so we can do that. And as far as scholar is considered, I think we would have a specific scholar. So we would have to manage with general scholar on that particular issue, like region wise and country wise, whatever scholar we have,
we could manage with that. And finally, we could conclude that this is a view of C. Raja Mohan that states hindering the foreign policy is not a good development, as shown by India's voting in context of Sri Lanka in 2014, if I recall. So rather, there should be more role of union, and there should be rather cooperative federalism. We should help in the foreign policy making. So this is my approach. Any addition? आई स्टार्टेड विद दिस फॉरेन पॉलिसी क्योंकि इसमें इस बार ही क्वेश्चन नहीं था ना डिटर्मिनेंट्स पे, वो मतलब डिटर्मिनेंट्स पे ज्यादातर आता है और मतलब पॉलिसी इंस्टीट्यूशन पे। तो आई स्टार्टेड विद फॉरेन पॉलिसी डेफिनेशन ओनली, वो जे.एन. दीक्षित का कि स्टेटमेंट ऑफ इंटरेस्ट वगैरह। देन आई सेड कि डज नॉट हैपन इन वैक्यूम, और मतलब इंडियन स्टेट्स आर मतलब एज बिग एज सम कंट्रीज, इसीलिए इनका इंपॉर्टेंस ज्यादा होता जा रहा है। देन आई शोड कि पार्लियामेंट्री रूट से मतलब रीजनल पार्टीज आर ट्राइंग टू नो, फिर इसमें AIMDMK का तमिलनाडु वाला एग्जांपल। एंड देन एक मैंने सिटी जो सिस्टर सिटी एग्रीमेंट्स होती है ना, क्योटो एंड अहमदाबाद वाला, वो दिखाया। एंड देन कि रीजनली लिंक्ड डायस्पोरा होता है, तो उसमें कनाडा और पंजाब वाला, और वेस्ट एशिया और केरला, बस यही। इसमें शायद जो बांग्लादेश और श्रीलंका का इशू है ना, तमिल का या फिर जो बांग्लादेश का, वो भी मेंशन कर सकते हैं, सेइंग कि इम्पोर्टेंस है, मतलब कि देना पड़ेगा स्टेट्स के व्यूज को इन्फ्लुएंस। So like I have a query on these topics, how to use Scholar, because actually when we write exam it becomes very difficult to use scholars. पहले हम आई थिंक इन ऑर्डर टू ऐड स्कॉलर वी शुड फर्स्ट organize or structurize the answer. First we can, after brief intro, we can write in two sets. One, how state make positive extension of India's foreign play a positive role in India's foreign relation, and second, how state interferes in two relations. So when it comes to interference, C. Raja Mohan wala part can be quoted, and we can say that as C. Raja Mohan states that state intrusion is not a positive for India's foreign policy. We can give example here, and in terms of positive role played by states, we can help that India from Punjab region, India-Canada relations of culture, and have engaged in social constructive school of thought. We can also give example of Kerala and UAE. A lot of UAE has a considering a huge diaspora of Kerala, specifically Kerala in UAE. The relation between India and UAE are organic in nature. इस तरीके से we can add something. और वहीं पे जो भी इनिशिएटिव लाइक मैग्नेटिक महाराष्ट्र, यूपी में भी कुछ बताओ, वाइब्रेंट गुजरात इनिशिएटिव हुआ था। एग्जैक्टली इसमें काफी स्टेट्स हैं जिसका कंट्री स्पेसिफिक काफी हो गया है। लाइक जापान की मोस्ट ऑफ द इन्वेस्टमेंट जो इंडिया में आती है दैट इज बेस्ड ऑन हरियाणा रीजन या हरियाणा स्टेट्स में जा रही है। तो वैसे ही जैसे तेलंगाना का काफी इशू चल रहा है कि यूएस के साथ डायरेक्टली आईटी कंपनीज के साथ इंगेज कर रहे हैं, तो इकोनॉमिक फ्रंट पे भी काफी चीज हम एग्जाम्पल कर सकते हैं। गुजरात एंड इजराइल। Is this video being recorded? Yes, it is being recorded. Don't worry. Because ये जो अभी last 2-3 years questions are important. और अभी I don't have energy to note down to record. नहीं, don't worry. Good. In fact, we also discussed paper 1, section 1, section 2, as well as paper 2, section 1. There were more than 15 to 20 participants in all the sessions. So you guys can look at these videos on YouTube channel as well. I have uploaded all the 3 videos on YouTube channel. Do take a look whenever you guys are free. बाकी लोग मतलब जो भी नए होंगे ना आज, ठीक है? Okay, thank you. हाँ, Harsh V. Pant by the way has used the word federalization of Indian foreign policy has happened. मतलब decentralization हुआ है.
फ्रॉम ग्लोबल पॉलिटिक्स इट हैज बिकम लोकल पॉलिटिक्स, ऐसा कुछ। तो जस्ट कीवर्ड्स लिखे हुए थे। एक एग्जांपल, रीसेंट एग्जांपल भी ऐड कर सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू फार्मर्स प्रोटेस्ट। रिसेंटली in United Kingdom Parliament, there has been some member of Parliament who has raised voice to Indian government with respect to ongoing farmers protest. So that also reflects that in case of there is any difference within India, outside or maybe foreign countries should not have locus standi in India's internal matters. इस तरीके से भी कोट कर सकते हैं। Even UK parliamentarian said that it's an Indian matter of India. So is it? I don't think seeing that. Okay, इसमें conclude क्या करेंगे? How would we conclude this? I think that is not that relevant, whatever we are quoting, and we have already excess of content. So in this we can conclude that whatever C. Rajamohan view, that foreign policy is clearly in the union domain as mentioned in 7th schedule, and even in the larger interest of the nation, it is better that foreign policy taking the interest of the entire nation is made. So there should be and union should play the leading role, and states should rather cooperative and conciliatory approach. So that could be a conclusion in my view. यार I would say we should go for other viewpoint, जहाँ पे मतलब we are more accommodative towards states. States' views are taken and foreign policy is not created in the silos of the New Delhi, but in different state capitals also should be consulted. मतलब ऐसा कुछ kind of जो pluralistic inclusive viewpoint होता है ना, वैसा रहना चाहिए. And I'm sure there will be some scholars supporting this as well. ये है श्रीलंका के कंटेक्स्ट में एग्जांपल है. I think Suhasini Haidar has held that India-Sri Lanka relations are on bedrock of 4 pillars: New Delhi, Madras, Jaffna and Colombo. So ये उनका पॉइंट है जो आपने अभी रखा है. हाँ, मतलब ठीक है. I think चलो we can conclude in both ways. We can agree to disagree on this. We'll move to next question. जैसा भी सबको सही लगे. Next question है question number 7C. Examine the evolution of India's role in the global nuclear order. Examine the evolution of India's role in the global nuclear order. तो कैसे इंट्रोड्यूस करेंगे इसको? Should we start with India or nuclear order? I think question is on nuclear order, and within that India's. We can start with global nuclear order. First of all, we can mention a realist view by example Kenneth Walls, who mentioned that nuclear power is a measure of permanent guarantee of security as well as measure of national power. So there has been a sort of competition to gain a nuclear weapon. However, we can mention take a historical view in this question. We can mention that NPT formed in 1968 defines global nuclear order, where permanent 5 countries are supposed to hold nuclear weapon and other countries are not allowed to have nuclear weapon. India has been in that we can quote view of Shyam Sharan. So he mentioned that this view has been opposed by India since 1968, considering it discriminatory and establishing global nuclear hegemony. Then we can, in this question, I think we should take a historical view. For example, when India in 1974 opposed this move and through Operation Pokhran tested the first time nuclear weapon. So that led to formation of NSG, and thereafter India has been always proposing a universal nuclear disarmament. In that context, in 1980s, I don't recall the exact year, Rajiv Gandhi plan came, which formulated a global nuclear order
where all countries were supposed to disown and completely disarm themselves nuclearly. They disarm their nuclear weapons. Thereafter, we can mention 1997 CTBT, which was again opposed by India. And in recent 1998, India acquired nuclear weapon, which was necessary for India's security, taking a realist view against the existential threat from China. And in present, we can mention views of a scholar like C. Uday Bhaskar, who mentions that India taking the Gandhian approach is against nuclear weapon, but it is a security need for India in a world of anarchy. Or as of now, India is a supporter of global nuclear disarmament, and in this context, India refuses to first disown nuclear weapon, but is ready to do so when there is both horizontal and vertical nuclear disarmament. So this is my view. I don't know. In few places here and there, we can fix scholars and some theoretical view. I think we can quote India's argument with respect to India's stand on realistic idea to denuclearize the world. India is one of the foremost country that argues that nuclear weapons should be eradicated wholly. I mean, the argument that Sachin gave just now with respect to horizontal as well as vertical disarmament. So that thing should be highlighted, and that argument can be given from Conference of Disarmament. That was, I think, 1997 or 1996 में उसको लेकर आए थे. So that's some and they should undergo with respect to United Nations. तो ये वाला point को add करना चाहिए. Even Dr. APJ Abdul Kalam said, we can pursue our interests without having a nuclear. In this, no, we can use views of Gandhi, who mentioned nuclear weapon as the most diabolical use of scientific endeavors. So that shows India's ideological position on nuclear weapon. But on quoting on realist view, we can mention somewhere Kautilya that the most important is of security, and for that power is essential. So that shows India's tradition in a way, India's culture and heritage. But the challenge is to fix it in a proper order. So, and in present context, we can say in contemporary times, like there is a convention on nuclear treaty, something of this sort in 2017, which 9 countries have not signed. So that is India's most recent position. I'm not sure about that convention. So we can mention about that because that will give a contemporary view. If anybody is sure what's the name of that organization? Sachin, can you repeat? You're asking for which organization? He says in The recent organization times name in is Coalition for Nuclear Disarmament. It was signed in 2017, and this is the convention which has been signed by almost all countries of the world except 9 countries, P5 countries and other 4 countries who are supposed to have nuclear weapons. So India's position on that convention, if we can quote Indian position on that convention, then that will give a contemporary view of this question. The Proliferation Treaty. You're saying in a Non-Proliferation Treaty, NPT? No, not that. That is very old. Like it is a convention. It is a kind of NGO. So this NGO, Global Nuclear Disarmament. So
there is a consensus across the world that nuclear weapons should be disarmed and there should be complete nuclear disarmament. But 9 countries, they have not signed it. So that in a way shows that a nuclear weapon is needed. Yet there is a sort of consensus that it should be removed. And India's position is in a way of India is taking a post-colonial view that how nuclear weapon can be discriminatory. If P5 countries are allowed to have nuclear weapon, then that will establish a sort of nuclear hegemony, and it would be a existential threat for India because China would have nuclear weapon in that context. So that point is very essential to bring. One thing, I think we are a bit digressing from question. क्वेश्चन में पूछा है कि यार इंडिया का रोल जो है ना, कैसे जो इंडिया का स्टेचर है वो बढ़ता गया है ग्लोबल न्यूक्लियर ऑर्डर के अंदर, वो हमें एस्टेब्लिश करना है बाय सेइंग कि जैसे रिसेंटली बहुत सारे कंट्रीज ने न्यूक्लियर डील, सिविल डील साइन करने के लिए कोशिश भी करी, जैसे यूएसए ने कर दिया, ऑस्ट्रेलिया वाज रेडी टू सेल यूरेनियम. तो मतलब ऐसी चीजों को हम दिखा सकते थोड़ा सा. India is a मतलब मोर देन, responsible state. हाँ I करेक्ट, think this मतलब is a good, this is a good approach also, but the point is this is subjective variation. No, what is global nuclear order? How do we define it? नहीं मतलब मुझे लग रहा है ना ऐसे कि फ्यू इयर्स बिफोर इंडिया को मतलब न्यूक्लियर स्टेट तो मानते ही नहीं थे कोई, एंड इंडिया को ऐसे मतलब लोली पावर बोलते थे. टुडे इंडिया कैन बी और इट इज बीइंग सीन एज अ मेजर न्यूक्लियर पावर एज वेल एज अ मेजर रिस्पॉन्सिबल पावर एज वेल. ये मतलब ये इवोल्यूशन दिखाना बेसिकली ऐसा लग रहा है मुझे क्वेश्चन में. मैंने तो यही दिखाया पहले, तो वो ही मतलब डायरेक्टली बता दिया कि न्यूक्लियर ऑर्डर 1960s का मतलब एनपीटी से डिसाइड होता है ना, फिर हैव नॉट्स एंड हैव्स. फिर मैंने स्टार्ट इससे किया कि स्माइलिंग बुद्धा हो गया, फिर उसके बाद जब पोखरण टेस्ट हुआ तो सैंक्शंस लग गया, बट उसके बाद थोड़े साल बाद ही मतलब इंस्टेंटली दिखाते हुए कि काफी जल्दी नेशंस को रियलाइज हुआ, तो यूएस ने हमारे साथ सिविल डील करी 2005 वाला, उससे फिर हम और फिर दूसरी कंट्रीज भी करने लग गई, तो वी बिकेम अ रिस्पॉन्सिबल न्यूक्लियर पावर, है ना. दिस आई शोड. फिर ये डिफेंस जापान एंड ऑस्ट्रेलिया के साथ भी हो गया. And then US also gave us, helped us get entry into this, all these institutions, WSNR, Australia and ये MTCR. मैंने ज्यादा ये लिखा है. The domino effect of nuclear weapon. Can we call that the domino effect of nuclear weapon? I think both the approach are correct, and ideal answer should be a mix of both. If we are adding just one view, no. If I could have attempted, maybe I would have written the view which I said earlier. But better thing is we allocate equal space to both, because one is for nuclear disarmament, other is for proper use of nuclear weapon, and both are useful, and both are in a way segment of global nuclear order. ठीक है. So how would we conclude this? E-pages. How would we conclude this? मैंने तो 1988 वाले प्लान से ही किया कि राजीव गांधी एक्शन प्लान पे वी आर वांट अ वेरिफिएबल ग्लोबल डिसआर्मामेंट. बहुत जल्दी कर लिया, 2020 में तो कर लेते कम से कम. नहीं, पर हमारा प्लान ऑफ एक्शन तो वही रहा है ना अभी तक. देयर इज नो चेंज इन प्लान ऑफ एक्शन. चाहे 2020 में हो गया. मतलब जो ऑफ व्हाट आई डोंट नो व्हाट इज योर नेम, लेकिन आपने मतलब लिखा तो ज्यादा उसमें लिखा क्या, एनएसजी एमटीसीआर इसके बारे में लिखा क्या? नहीं, पहले मैंने बताया ना एनपीटी का तो पहले ही लिख दिया स्टार्टिंग में. नहीं, आई स्टार्टेड विद इटसेल्फ कि एनपीटी ही ग्लोबल ऑर्डर डिफाइन किया. देन आई टोल्ड कि वी डिड नॉट साइन एन एनपीटी, हैव नॉट साइन वगैरह. एंड देन हाँ, फिर मैंने दिखाया स्माइलिंग बुद्धा और ये वाला पोखरण, उसके बाद सैंक्शंस, एंड फिर ये ट्रीटीज एंड इंस्टीट्यूशंस, और उसके बाद मैंने एंड डिसआर्मामेंट पे कर दिया. नहीं, तब तो फिर आपका आंसर अच्छा है, होलिस्टिक है. हाँ, बट इसमें स्कॉलर एक भी नहीं था, क्योंकि बिकॉज आई एम वेरी मतलब बहुत ही स्लो हो जाता है मेरा, तो टाइम मेरे पास बहुत कम था. अरे दैट्स फाइन, स्कॉलर से फर्क नहीं पड़ता है. शुभ्रा मैम ने खुद बोला हुआ है. मतलब हाँ, ये इफ योर आर्गुमेंट्स आर, लग रहा था कि इसे लिख नहीं पाऊंगा, बट वो जल्दी जल्दी ये आता गया, तो मैंने ये सब लिख दिया बस. इफ योर आर्गुमेंट्स आर कोहेरेंट, आई थिंक जितने भी क्वेश्चंस है ना, इफ यू जस्ट राइट इन द करेक्ट ओरिएंटेशन ना एक्चुअली एग्जाम में, तो उससे भी बहुत अच्छे मार्क्स आ जाते हैं.
हाँ वो स्कॉलर इतना स्कॉलर वगैरह यस यस उतना मैटर नहीं और करता है वो रियली। इतना हाइप पे ना मुझे नहीं लगता कि, क्योंकि इतने सारे मैंने अलग अलग लिखे भी थे इस बार तो, पर वो कुछ भी याद नहीं आता किसने क्या बोला है। सही मतलब बात इवन है। इफ आई यूज समवेयर स्कॉलर्स ना, तो वो मैंने तो डेलिबरेटली यूज किया है। जैसे कि नहीं बोलते सुहासनी हैदर डाल दो, बस ब्रैकेट में डाल डाल के कहीं पे यूज किया है, नहीं लाइक नहीं, हो वैसे ही एक्चुअल एग्जाम में वैसे ही होता है, सबके साथ वैसा ही होता या है। बट हाँ मतलब जैसे No. मेन हमारे स्कॉलर्स जो मतलब पेपर ए के पार्ट में तो हो जाते हैं आराम से यूज, है ना, वो सब तो आराम से यूज कर सकते हैं। पर उसमें भी मेरा एक जगह पीएन भगवती हो गया जगदीश की जगह कोई वही बात है। नहीं, कोई बात नहीं। चलो आई थिंक ठीक है। आगे आगे चलते हैं अपन। वैसे यार मतलब अगर फ्यूचरिस्टिक कुछ दिखा नहीं सकते क्या, मतलब जैसे इंडिया राइटफुल प्लेस इन द कॉमिटी ऑफ द नेशन ऐसा कुछ, या फिर इंडिया एज चाहिए अ ग्लोबल सुपर पावर ऐसा कुछ। मतलब एक और आई है ना थिंक ना जैसे इसमें मोदी जी। दो व्यू लिया जा सकता है। अगर हम रियलिस्ट व्यू देखें तो रियलिस्ट व्यू में न्यूक्लियर वेपन इज जस्टिफाइड। तो एज यू मेंशन नो, वो अच्छा है कि इंडिया इट इज अ वे ऑफ इट इज अ वे टू शो ग्लोबल पावर। तो वो एक फेवरेबल दे। अगर लिबरल व्यू से हम कंक्लूड करें तो फिर जाइए नहीं, न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट होना चाहिए। तो आई थिंक बोथ द वेज आर गुड एनफ, डिपेंड्स। I will also end this with Narendra Modi's statement कि 21st century cannot be ruled by the rules and institutions of 20th century. There is a need to revise the nuclear global order. जो NPT वगैरह ये सब है ना, ये जो treaties global order जो है, इसको रिवाइज करने की जरूरत है। There is need for more inclusive, ऐसा कुछ I would conclude. अच्छा, मतलब एक मतलब जनरल डाउट्स है, मतलब जो हमारे अभी तो है ना कि हमें टाइम मिलता है, हम सोच लेते हैं आसानी से। एग्जामिनेशन में ना कि लाइक ग्लोबल न्यूक्लियर ऑर्डर या देयर आर मेनी क्वेश्चंस, tools of legitimation of state, so there could be various interpretation of these type of questions. तो इसका as good as possible interpretation how could be done? यार इसके बारे में ना मैंने कल परसों ही शायद लास्ट वीक में एक देखा था, एसएस के बारे में। यूपीएससी किसी ने तो कुछ कंप्लेंट करा था, कुछ किया था वुमन के ऊपर ऐसे था कुछ। तो देर आर ऑलवेज पॉसिबिलिटीज ऑफ मिस इंटरप्रेटिंग द क्वेश्चन। एंड जितना यूपीएससी ने उसमें रिप्लाई दिया था ना, दे सेड कि जितने भी मल्टीपल सब्जेक्टिव ओपिनियन हो सकते हैं, वी आर ओपन फॉर इट। एंड वी मतलब इंस्ट्रक्टर को जो देते हैं ना, वो उन्होंने ऐसा लिखा था कि इट इज ओपन, मतलब ऐसा एकदम नैरो आंसर नहीं होता है कभी भी। तो आई थिंक इंटरप्रिटेशन वो कैसा भी दे theoretical दो, सेंस में सही है ना, लेकिन प्रैक्टिकल वो सही कह रहे हो यार। बट आई थिंक अगर तुमने राइट कीवर्ड हिट कर लिया ना, अगर फ्लो अच्छा है तो मार्क्स मिल जाने चाहिए। अगर मतलब कंप्लीटली मिस नहीं करा है, कंप्लीटली अलग 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 ही कुछ नहीं लिया ना इंटरप्रिटेशन, तब जैसे तक नंबर मिल जाने एग्जांपल अभी चाहिए। है ना जो ग्लोबल न्यूक्लियर ऑर्डर, तो इतना टाइम प्रेशर में ना ये बहुत चांसेस होते हैं ना कि आप या तो पूरा डिसआर्मामेंट के का एक हिस्टोरिकल व्यू में चले जाओ, या एनएसजी एमटीसीआर जो करंट डिबेट है उसमें चले जाओ। और दोनों को मिक्स करके लिखना 3 पेजेस में बैलेंस कर देना वेरी चैलेंजिंग। या और मतलब फर्स्ट टाइम जब मैंने इसको चॉइस किया था तो क्या होता है एग्जाम में तो कुछ और ही होता है। तो मैंने तो इसमें ना इसको मैंने, क्योंकि जब चॉइस करते हैं तो जल्दी ऊपर ऊपर से देखते हैं ना कि ये चलो आता है, तो मैंने तो इसे ऑर्डर देखा था, मुझे लगा वर्ल्ड ऑर्डर पे लिखना है। फिर वो तो जब दोबारा हम लिखते हैं एक्चुअली, तब मुझे पता चला कि न्यूक्लियर पे लिखना है। तो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं यार। यार एक्चुअली मतलब स्टूडेंट्स आर नॉट टू बी ब्लेम्ड, बिकॉज यार बहुत डिफिकल्ट होता है 7 to 10 मिनट्स में एक क्वेश्चन करना है। ऐसे मतलब क्रिटिकल उन्होंने वर्ड्स का यूसेज देखो यार, जीएस में भी और ऑप्शनल में भी, इट इज वेरी वेरी डिफिकल्ट टू इंटरप्रेट द क्वेश्चन। बट ठीक है, सब क्या होता है ऐसे। विल मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8A है, रिलेशन बिटवीन इंडिया एंड रशिया रूटेड इन हिस्ट्री, म्यूचुअल ट्रस्ट एंड म्यूचुअली बेनिफिशियल कोऑपरेशन डिस्कस। तो बेसिकली इंडिया रशिया रिलेशंस के ऊपर क्वेश्चन है, एंड डायमेंशन बताया उन्होंने कि हिस्ट्री, म्यूचुअल ट्रस्ट एंड म्यूचुअली बेनिफिशियल कोऑपरेशन। इसको यार इंट्रोडक्शन एक मेरे पास तो बहुत बेस्ट है, शायद पीएम मोदी ने बोला था कि एवरी चिल्ड्रन इन इंडिया नोज हु इज आवर बेस्ट फ्रेंड। ये तो रटा हुआ। ये तो एवरलास्टिंग इंट्रोडक्शन है। हाँ, वो तो ये काफी रशिया की अच्छा है। कॉन्टेक्स्ट में था ना। हाँ, पर ठीक है, मतलब इंडिया रशिया का है यार, कुछ भी कर लो। मैरिज नहीं, वो है ना म्यूचुअल ट्रस्ट
there are few keywords, no, like mutual trust, mutually beneficial cooperation. इसी के आगे So एक और लिख सकते हैं that's जो a good अभी intro. दीपक ने आर्गुमेंट लिखा, इसी के आगे ऐड कर सकते हैं दैट इंडिया रशिया रिलेशन हैज स्टूड द टेस्ट ऑफ टाइम एंड स्पेस एंड दे आर रूटेड इन हिस्ट्री, और फिर क्वेश्चन को रिपीट कर देंगे, हिस्ट्री, म्यूचुअल ट्रस्ट एंड म्यूचुअल बेनिफिशियल कोऑपरेशन। सही ये है भी कर सर। सकते ये कोई भी कर और लो। एक और I- इसमें in- चाणक्य in की this थियरी भी डाल question- सकते हैं, से नो जैसे मुझे जो लगता है कि वो सब जिसको जो याद होता है इंट्रोडक्शन वो याद कर लेते हैं, वो डिफर करता रहेगा। लेट अस डिस्कस द क्रक्स ऑफ द क्वेश्चन, मेन कंटेंट क्या है, वो सब तो पेरिफेरल पार्ट है ना। सो आई थिंक पता इन है दिस क्या इंडिया क्वेश्चन, रशिया सचिन कंप्लीट योर पॉइंट। अच्छा, in this question first we can take a historical view. तो in historical view दो तीन इवेंट हम दिखा सकते हैं, rooted in history है ना। तो first we can show 1971 war, how Russia through treaty of peace, friendship and cooperation turned out to be security umbrella for India and stopped to the US ships which was docked in Indian Ocean. तो वो एक historical angle है। और in that context, PM Modi in last few summits evoked a Russian proverb which says that one old friend is better than two new. तो वो एक historical लिख सकते हैं एक pages में, और एक context हम दे सकते हैं कोल्ड वॉर का एरा में भी, how Russia passed on nuclear technology to India, and even now it focuses on in a way joint production. तो ये हिस्टोरिकल है, डिफेंस दिखा सकते हैं हिस्टोरिकल में। देन वी कैन टॉक अबाउट म्यूचुअल ट्रस्ट एंड म्यूचुअली बेनिफिशियल कोऑपरेशन। तो म्यूचुअली ट्रस्ट में वी कैन शो चाणक्य's मंडल थ्योरी। तो इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ चाइना, इंडिया एंड रशिया आर नेचुरल फ्रेंड्स, तो वो एक कहीं ना कहीं ट्रस्ट को बिल्ड करता है और लॉन्ग लास्टिंग रिलेशंस है। डिफेंस, अगेन डिफेंस प्रोडक्ट, डिफेंस जो इंडिया का रशिया से जितने रिलेशंस है, सो दैट बिल्ड्स अ काइंड ऑफ ट्रस्ट, बिकॉज जो रशियन S-400 है, इन सब की टेक्नोलॉजी ट्रांसफर होता है साथ साथ में, नॉट ओनली इक्विपमेंट्स बट ऑल्सो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर। तो ये सब है म्यूचुअली बेनिफिशियल कोऑपरेशन। अगेन वी कैन टेक एग्जांपल ऑफ लाइक ईस्ट रशियन रीजन, जो अभी वो है ना ईस्ट, हाँ फार ईस्ट का, एंड चेन्नई व्लादिवोस्टोक जो लिंक है, तो दैट कुड बूस्ट बोथ द कंट्रीज इकोनॉमिक ग्रोथ, एम्प्लॉयमेंट, रिसोर्स यूज। अगेन वी कैन यूज आर्कटिक रीजन, उसमें नेविगेशन वगैरह इंप्रूव करेगा। तो ऑल दोज थिंग्स विद साइंस एंड टेक्नोलॉजी, I think we can put everything in mutually beneficial cooperation. But Okay. here we also have to show a counter perspective, because the keyword is discuss. So in that we have to show two things. First, Russia's increasing relationship with Pakistan and China, which is creating problem for India because a kind of axis is developing. Second, India's closer relationship with USA and fears of Karsa and all, which would create trouble. और फिर उसमें और भी peripheral aspects we can add, like in decreasing defense imports, and also जो summits वगैरह हुए डिले हुआ है। और in conclusion we can show a contemporary view कि recently Russian President Putin came to India, and this was only his second foreign visit during the entire COVID pandemic. So that shows the urgency both countries gave to each other. और उसमें if somebody recalls कुछ जो points shine हुए हैं, या इंडिया रशिया रिलेशंस जो एनुअल समिट्स होते हैं, 2+2 डायलॉग होते हैं, so that shows how important this relation is for both the countries. तो ऐसा कुछ कर सकते हैं। और जो स्कॉलर है, तो आई थिंक जो भी स्कॉलर नेचुरली फ्लो में आते जाता है, we can mention that. आई थिंक वैसे बहुत ब्रॉड क्वेश्चन था, एंड इसमें लिखने के लिए बहुत कुछ है, तो वी शुड मूव ऑन। अगर कुछ है स्पेसिफिक पॉइंटर्स तो बता दो जल्दी से, नहीं तो आगे चलते हैं।
और इसमें तो मुझे लगता है पूरा ही इंडिया रशिया रिलेशनशिप लिख सकते थे एकदम। वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन था पेपर का। एक जो पॉइंट भी मैं ऐड जिसका करता नहीं हूँ होगा कि सब लिख के आ जाएगा। हाँ, तो ऐसा है कि जो जीएस में क्वेश्चंस आ रहे हैं वो ऑप्शनल में भी आ रहे हैं। तो आईआर में भी वी हैव रशिया वाला इस बार क्वेश्चन एंड इट केम इन जीएस इन ऑप्शनल आल्सो। यार हमेशा ही आएंगे, आईआर में क्या ही अलग होगा यार, वही तो घुमा फिरा के आएगा। जैसे लास्ट ईयर मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि चाइना पे आएंगे 3-4 क्वेश्चन, बट आए नहीं, वो जीएस में भी नहीं आए। जैसे इस साल लैंडस्लाइड वाला जीएस में उधर भी आया इधर भी आया, वही। इसमें एक और मेंशन करना होगा इंट्रो के अंदर क्वेश्चंस ना तो रिपीट होते हैं। जैसे COP26 इस बार हुआ, तो जिस बार राइट टू प्राइवेसी जजमेंट आया था तो 3 बार पूछ दिया था वो पूरे मेंस में ही। तो ये होता है कि जो इशू होता है करंट वाले वो हर जगह आ जाता है। तो मतलब जो मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स है वो ना करने की पेनल्टी बहुत ज्यादा है। तो अगर किसी ने वो पंचामृत याद नहीं करे होता ना, तो समझ लो मतलब उसके 2-3 क्वेश्चन में नंबर जाते। और ये तो था, मैं तो उसको जीएस के लिए पढ़ा था। अब ऑप्शनल में आया, उसमें मैं 5वां पॉइंट भूल गया था एक्चुअली कि क्या है वो 5 पॉइंट ना, वो कौन 45% है, कौन 50% है, कौन 20-30 है। वो तो ठीक है कि सब 20-30 है, 20-70 है, तो लोगों को याद हो जाता है। नहीं तो वो भी चैलेंजिंग है, कुछ ना कुछ तो भगवान गड़बड़ होता ही है उसमें। हाँ इसलिए मेरे ये साथ सोच के जीएस में छोड़ हुआ दिया था कि वो। जीएस में आ गया है, जीएस में आ गया है, अब कहीं ऑप्शनल में आएगा, वो लोग भी लैग कर जाते हैं फिर। मेरे साथ वही ऐसा ना। हुआ कि जीएस में मुझे आउटकम्स तो मैंने एक दिन पहले पढ़े तो ढंग से आते हैं, और मैंने ये भी पढ़े 5, बट वो भूल गया मैं फिर भी। तो मतलब फिर भी लिख दिया, कैसे किसी को 50 कर दिया, वो ऊट पटांग तो हो गया। बट फिर मैंने दोबारा ऑप्शनल के लिए पढ़े, तो इस बार तो याद आ गए थे 5। ऐसा भी होता है ना कि एग्जाम में जब जीएस में एक बार आ गया क्वेश्चन तो वो लिख जाने के बाद दिमाग से उड़ जाता है कि चलो इसका तो काम हो गया, मतलब 1-2 पॉइंट मिस हो ही जाता है। यस, फिर इसलिए अगर मैंने ऑप्शन उसको में सेव पहले कर से सकते छोटा थे। छोटा लिख लिया था यहाँ पे कि ये 50-50 है, ऐसे करके। सही। चलो ठीक है, आई थिंक हम आगे चलते हैं। ये सब बातें यार डिस्कस करने के लिए अलग से सेशन करना था, बट मेंस वाले लोग आए ही नहीं। चलो देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8B, डिस्कस द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स एज सेट बाय द यूनाइटेड नेशंस। वाओ, कितना ब्रॉड क्वेश्चन छोड़ दिया मतलब। इसी क्वेश्चन की वजह से आई थिंक ये वाला क्वेश्चन किया नहीं होगा ज्यादा जनता ने। एग्जैक्टली। और इसमें यस, मतलब मैं क्लियर भी ये नहीं है नहीं ना किया। कि इंडिया एंड वर्ल्ड में पूछा है तो इंडिया के पर्सपेक्टिव में बताना, आईआर के पर्सपेक्टिव में बताना है। यस, और मैंने इसमें अफ्रीका भी नहीं रिवाइज किया था, तो ये वाला तो नहीं कर सकते थे। चलो अब कर लो, अब अगर अटेम्प्ट करना है तो कैसे करोगे? हाँ, एक बार सभी लोग प्लीज माइक बंद कर लेंगे, वॉइस ना पूरी ब्रेक हो गई, जिसने भी कुछ भी बोला सुनाई नहीं दिया कुछ भी। ओके नाउ प्लीज स्पीक अप गाइस, मतलब कोई एक तो बोलो। एसडीजी का ओरिजिन दे देंगे, उसके बाद इसमें मतलब फिर 17 गोल्स है, तो उसी को पता नहीं स्टेप बाई 1 to 17 अगर किसी को याद है तो वो तो वैसे कर सकते हैं डिस्कस, बट बहुत नहीं, चैलेंजिंग। वो तो थोड़ा जीएस टाइप नहीं हो जाएगा इसमें। हाँ, वैसे इसको एक थोड़ा क्वेश्चन सिलेबस के किस टॉपिक से लिंक करता है? आई एम नॉट एबल टू फाइंड एनी टॉपिक जो लिंक कर सकते हैं डायरेक्टली अपन। और मतलब ये ये सेक्शन थोड़ा सा बी में है। Environment, I mean थोड़ा issues, सा contemporary issues. नो, या ये सेक्शन बी में है ना। पार्ट 1 के कंटेम्पररी इशू लास्ट टॉपिक, पेपर 2 पार्ट 1 के लास्ट टॉपिक ये से लिंक कर सकता है थोड़ा बहुत, बट ये बट तो ये बी Like में आया है ना, वो प्रॉब्लम है, ये सेक्शन बी में आया है फिर भी। एक्चुअली मुझे ऐसा लगता है कि बाउंड्री जो ना फ्लूइड है, कभी कभी 2A का 2B में मतलब ऐसा वो पूछ देते हैं कभी कभी शॉकर जैसे। नहीं, बट वैसे हम समझने के लिए कर रहे हैं, वैसे तो या यू कैन राइट व्हाटएवर यू स्टडीड इन दैट नो, बट एक फिक्स करने के लिए आई एम सेइंग। नहीं जनरली मतलब यार यूपीएससी रिस्पेक्ट्स
एटलीस्ट थोड़ा बहुत पूछता है, वो कुछ तो लिंक होता है, मतलब कंप्लीटली नहीं, पता नहीं इसमें क्या ही लिखेंगे यार। ठीक है, आई थिंक जनरली सब लिखेंगे, जो भी याद आ रहा है लिख दो। इसे I फंक्शनलिज्म want to से add कहीं here. जोड़ना होगा, क्योंकि Hello. पहले भी एक मयूर बार ना कंटिन्यू। एसडीजी आ चुका है, तो तब सब Here डिस्कशन हुआ था बहुत we can compare the SDGs with like its precursors, CMDGs. So SDGs are like they are targeting both developed and developing countries, while MDG first difference, and the second difference is the inclusion of civil society for implementation of SDGs. So that is the second point, and आई थिंक आपकी वॉइस ब्रेक qualitative upgradation of goals from its earlier precursor. So that analytical point, beside the just discussing sustainable development goals, can be done here. सर आप रिपीट करेंगे क्या? आपकी आवाज चली गई थी बीच में। Hello. हाँ हाँ आ रही है, अब आ रही है। I hope you like you were able to listen me. नो सर, एक्चुअली आवाज ना कट जा रही थी बार बार। फिर से बोल दीजिए एक बार क्विकली। इसलिए उन्होंने एसडीजी और एमडीजी को कंपेयर किया और वो 2 पॉइंट्स बताए। ठीक है, उन्होंने अच्छा पॉइंट दिया कि डेवलप एमजीडी में था ना, उसमें सिर्फ डेवलप्ड कंट्रीज के लिए था, इसमें डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्रीज का भी आया है, और फिर कम्युनिटी पार्टिसिपेशन भी शायद बोला, और थोड़ा गोल्स को हमने थोड़ा हायर लेवल पे कर दिया है। तो ये काफी अच्छा है एनालिटिकल, क्योंकि वो 17 करते करते तो बहुत वो हो जाएगा एक मोनोटोनस। कीवर्ड इसके लिए एक और है, नो वन इज लेफ्ट बिहाइंड। ये एसडीजी के कीवर्ड में नो वन इज लेफ्ट बिहाइंड ऐसा कुछ भी है ना, वी कैन राइट दैट टू। ये कर सकते हैं, इनका इसका बेसिक जो एजेंडा होता है ना, वो 5 P's होता है, आई थिंक वो हम लिख सकते हैं, वो काफी ज्यादा सही रहेगा। पीपल, पीपल, प्लैनेट, पार्टनरशिप, प्रॉस्पेरिटी, प्लैनेट। या वो वाला। और इसको ह्यूमन डेवलपमेंट से लिंक करके बता सकते हो, या तो ह्यूमन डेवलपमेंट से कर करके कि ये इसके सब पार्ट्स हैं, तो और हाँ, ह्यूमन सिक्योरिटी से कर सकते हैं ना, हाउ ह्यूमन सिक्योरिटी बिकेम इम्पोर्टेंट, और फंक्शनलिज्म से कनेक्ट कर सकते हैं थ्योरीज में अगर करना होगा तो। टुवर्ड्स द कंक्लूजन अगर चाहे तो आप इसके प्रोग्रेस के बारे में भी बता सकते हैं, मतलब टुवर्ड्स द एंड पार्ट, नॉट इन द इमीडिएट कंक्लूजन, बट टुवर्ड्स द एंड आप चाहे तो प्रोग्रेस के बारे में बता सकते हैं। प्लीज कैरी ऑन। इसमें हम इंडिया और चाइना का लीड भी दिखा सकते हैं कि हाउ दे आर टेकिंग लीड इन एसजीडीज वाला, क्लीन डेवलपमेंट प्रोग्राम्स, जो मिशंस होते हैं वो वाले में, और ऐसे कि डेवलपिंग कंट्रीज नो ये सब। या व्हाई नॉट। और इसका इम्प्लीमेंटेशन कैसे हो रहा है उसके बारे में आई थिंक हम बहुत सारे यूएन के बाकी कॉन्फ्रेंसेस होते हैं ना, जैसे क्लाइमेट चेंज वगैरह के, वाटर के हो गए, जो ऐसे ओवरऑल सब कुछ डाल सकते हैं। मतलब जितने भी बाकी इनिशिएटिव्स हो रहे हैं वर्ल्ड वाइड, उनको डाल सकते हैं कि इम्प्लीमेंट करें, ये इनिशिएटिव लिए जा रहा है ऐसा। ये भी ऐड कर नीति आयोग इनिशिएटिव इन इंडिया। अब तो इंडेक्स भी निकालने लगा है स्टेप बाय, मतलब यूएन से होके सब रीजनल तक आ चुका है ये चीज, इसका एक अच्छा इम्पैक्ट है और इंडिया से लिंक हो जाएगा। Can we also add that SDG has also revived the function of United Nations? Because there are few scholars who argued that UN is in dilemma of its functional perspective, but the goal of SDG has revived the significance of United Nations and provided a platform for collective interest. As a platform for the whole nation to come to a single platform and work collectively for global peace and development. ओके, आई जस्ट केम अक्रॉस फैक्ट, मतलब ये जैसे अभी दृश्यम सर बता रहे थे ना कि यूपीएससी का कुछ नोटिस था ऐसे को लेकर, तो वो ना न्यू वुमेन करके ना एक टॉपिक आ गया था। तो आप लोग जैसे देखेंगे ये क्वेश्चन में भी ना एक सिंगल कोट में एक वर्ड है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। तो वो जो मतलब वो सर्कुलर था ना यूपीएससी ने इशू किया था, वो इसके रिगार्डिंग था। अगर कोई वर्ड
सिंगल कोट्स में है, तो इसका मतलब इट इज ओपन टू इंटरप्रिटेशन। एंड आई कंप्लीटली हैव नो आइडिया कि उन्होंने यहाँ पर ये क्यों ऐड किया, बट मुझे अभी वो सर्कुलर याद आया कि जो सर बात कर रहे थे, अगर कोई वर्ड को यूपीएससी ऐसे सिंगल कोट्स में डालती है तो इट इज ओपन टू योर मतलब वो टू योर इमेजिनेशन और टू आप कैसे इंटरप्रेट करते हैं उस पर था। ये तो बट वो पिछले एक्सप्रेस साल है ना, शायद हुआ सस्टेनेबल था डेवलपमेंट सस्ता गोल्स को ये एक्चुअली दोनों की बात समझ में नहीं आई, प्लीज को एक एक करके बोलिए आप लोग। ऑफ आप पहले बोल दीजिए, मैकियावेली आप बाद में बोल दीजिएगा, दोनों बंद कर लेते हो। ओके ओके, मैं कह रहा हूँ कि दैट वाज एसे ना, दिस इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स इज नॉट बियॉन्ड इंटरप्रिटेशन, इट इज यूनिवर्सली एक्सेप्टेड। या बट मैं वो फैक्ट लाना चाह रहा था कि वो यहाँ मैं वही पूछ भी रहा था कि ये यहाँ ऐसे सिंगल वो उसमें ऐसा ऐड किया, बस वो बिकॉज याद आ सिंगल गया था इन्वर्टेड वो कॉमन निकल आर गया। ऑल्सो हैविंग वेरियस यूजेस ना, तो इसलिए। यस यस ओके, राइट। तो शैल वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर किसी को और कुछ ऐड हाँ नहीं हाँ हाँ, करना है इस नेक्स्ट क्वेश्चन में नेक्स्ट तो। नेक्स्ट नेक्स्ट Okay, I will read out the question for you. मतलब question number 8C, the last question of the paper. Identify the drivers of India's new interest in Africa. India Africa relations में पूछा है। recent perspectives भी काफी सारे हैं इसमें, मतलब इंडिया अफ्रीका रिलेशंस में ऐसा नहीं है कि ये कोई नया ट्रेंड है, क्वेश्चन ऑलरेडी पूछे भी जा चुके हैं ऑप्शनल पेपर में इंडियन अफ्रीका रिलेशंस में। Anyone would like to start the answer with introduction? हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव से स्टार्ट कर सकते हैं क्या? गांधी इन अफ्रीका या फिर नैम? PM Modi has held that India, Africa are united by past, united by history. This was argument given. I think this was for specific of South Africa, but broadly this can be a term for Africa also. We can start with it. And in 21st century, India-Africa relations have gained multiple and gave new drivers with respect to economy, technology and development. या फिर SDGs को ऐड कर सकते हैं, इस तरीके से we can start maybe. इसमें डार्क कॉन्टिनेंट से लाइमलाइट वाला कर सकते हैं ना, दैट्स व्हाई आल्सो इंडिया स्टार्टेड प्लेइंग अ मेजर रोल, ऐसे करके कि फ्रॉम दैट अर्ज, मतलब जब इसको लाइमलाइट मिला फ्रॉम दैट इटसेल्फ। इसको ना वो बोलते हैं ना कि अर्लियर द अफ्रीका वाज द डार्क कॉन्टिनेंट या फिर ऐसे, एंड नाउ इट इज कॉन्टिनेंट ऑफ होप। या और उसके बाद डायरेक्ट ही बोल देंगे फ्रॉम दिस पैराडाइम शिफ्ट इंडियाज इंटरेस्ट आल्सो बिगिंस, ऐसे करके। यार इंडिया अफ्रीका कोई बढ़िया इंट्रोडक्शन नहीं है क्या, मतलब इसके अलावा कोई? Right. Yeah, Africa being the rainbow continent, India being the rainbow of democracy. नहीं, आई थिंक ना ये क्वेश्चन में न्यू इंटरेस्ट है ना, दैट स्टेटमेंट ऑफ टोनी ब्लेयर, आई थिंक दैट इज द मोस्ट एप्रोप्रिएट आउट हियर। है तो बहुत सारे, वो वी कैन यूज नेहरू, वी कैन यूज गांधी, इवन पीएम मोदी, तो आई थिंक दो कोड्स आर नॉट रेलेवेंट हियर। यहाँ पे वही रेलेवेंट है, न्यू इंटरेस्ट है ना, तो कॉन्टिनेंट ऑफ होप दैट इज द बेस्ट। और उसमें आई थिंक देयर आर सो मेनी न्यू इंटरेस्ट, सो वी शुड रिस्ट्रिक्ट द पास्ट इन अ वेरी शॉर्ट वे, और डायरेक्टली वी शुड मूव टू कि न्यू ड्राइवर्स क्या क्या है। हाँ, वो भी हिस्ट्री में ले जाना नहीं चाह रहा, इसलिए उसने जानबूझ के न्यू बोला ना। और वो ना एक कीवर्ड है ना, आइडेंटिफाई द ड्राइवर्स, यानी आइडेंटिफाई मींस इन अ वे यू हैव ये भी टू सही नेम बोला, इट कि आइडेंटिफाई। ये है, रादर देन डिस्कसिंग इट। फ्यूचरिस्टिक भी होना चाहिए इसमें। हाँ, तो बिल्कुल चाइना वाला भी करना पड़ेगा कि उसका डेप डिप्लोमेसी को काउंटर करने के लिए। I mean, we can कोविड call का the what are the डिप्लोमेसी drivers? वैक्सीन Yeah, देने का। economic sense, the strategic sense. Okay, first economic sense like लेट्स डू वन थिंग, नो resources. लेट्स गो जियोपॉलिटिकल, जियो स्ट्रेटेजी, जियो इकोनॉमिक, ऐसे करते हैं ना। जियोपॉलिटिकल बताओ क्या क्या इंपॉर्टेंस है। मेंबरशिप मतलब एयू के ऑलमोस्ट 52 लोग हैं। अगर हमें यूएनजीए में मतलब कुछ भी रिजोल्यूशन चाहिए तो
मतलब ऐसा चाइना पॉलिसी यूज करता है ये ट्रेड ऑफ का कि आप हमें यूएन में वोट कीजिए, हम आपको ठीक है, बट दिस इज नॉट न्यू, न्यू ड्राइवर लिख देंगे, बट ये न्यू नहीं है। मैरीटाइम सिक्योरिटी देखो that is न्यू तो important है। सबसे न्यू है इंडो पैसिफिक कॉन्सेप्ट, और उसमें है ना काउंटरिंग द अग्रेसिव राइज, तो वो इंडिया के जितने भी कोऑपरेशन है वो सारे हम लिख सकते हैं। जैसे इंडिया का न्यू बेस भी है बनाया ना मैत्री This जहाँ पे cooperation. हाँ पोस्ट पैन रीजन भी और उसमें सिक्योरिटी में वो जियोपॉलिटिकल में वो चाइना है। फिर भी है कि पॉलिटिकली में इफ यू वांट, इंडिया वांट्स रिफॉर्म इन यूएन परमानेंट मेंबरशिप, सो इन दैट इट कैन हेल्प। तीसरा है कि जियोपॉलिटिकल में कि एक तरह से अ न्यू कोल्ड वॉर इज इवॉल्विंग, और मैक्सिमम मेंबरशिप ऑफ नैम इज फ्रॉम अफ्रीका, तो उसमें एक रोल हो जाता है इसका। फिर वी कैन मूव टू जियो स्ट्रेटेजिक। सो जियो स्ट्रेटेजिक फर्स्ट वी कैन मेंशन मैरीटाइम सिक्योरिटी और इंडिया कॉन्सेप्ट ऑफ वो है ना प्रोजेक्ट मौसम एज वेल एज एक है ना वो क्या तो बोलते हैं उसको, आई एम नॉट एबल टू रिकॉल इट, जो एक फ्रेज है, इंडिया इज नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर, या सागर एंड नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर। तो वो कॉन्सेप्ट यू कैन यूज, देन वी कैन यूज नॉन ट्रेडिशनल थ्रेट्स लाइक पायरेसी और टेररिज्म, ये सारे वी कैन मेंशन। Thereafter you can move to geoeconomics. So in geoeconomics, first is food security, because Africa is a large continent with production of lots of food crops. So India in a way is getting saturated. और एग्रीकल्चर के भी जो क्लाइमेट रिस्क वगैरह है, तो इन दैट फर्स्ट इज फूड सिक्योरिटी, सेकंड इज ऑफ कोर्स द एनर्जी नीड्स। इंडिया वांट्स टू डाइवर्सिफाई द एनर्जी सोर्सेज, पर्टिकुलरली पेट्रोलियम, तो उसमें हम Strategic दिखा सकते minerals. हैं the role of African countries. Strategic minerals And like cobalt. then we can, then we can mention the private sector role and commerce opportunities of commerce, because telemedicine, Africa e-network, iTech program, these all things. So Indian companies have lots of scope because of sheer market size. Education. Pharmaceuticals, so these factors we Presence can of huge mention. diaspora, Yeah, Indian education. diaspora. हाँ ये सारे हैं, तो आई थिंक दैट विल बी मोर देन एनफ। एंड then we can conclude that India has shown the interest by opening 18 new diplomatic missions in Africa as announced by PM Modi in 2018. And in 2018 he famously said in Uganda that as India and Africa fought together the fight against colonialism, they will again fight the battle against underdevelopment। ये करके हम एंड कर सकते हैं। इसमें हम चाइना का डाल सकते हैं कि अफ्रीका प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन काउंटरिंग चाइना स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स पॉलिसी। एंड फिर वो जो सी राजावन का That's था ना, why we सिक्योरिटी में we बनाया are ना इंडो in. That's why we have ठीक है, in ठीक है। Seychelles, Comoros, then Mauritius, even, and even we are also thinking about the Djibouti, Japan. Japan has an overseas base. We are also sharing with. इसमें shall we mention anything with respect to pandemic that has impacted the world recently, and held that vaccine Maitri has given Vaccine Maitri increased in India. Africa. Yeah, it has increased India's soft power and credibility with respect to China, and has gained and India has gained strategic advantage. This would act as a new driver to increase India and Africa relations in near future. Sustainable. And also, yeah, right. One more thing. India have new strategic interest and strategic deal with Egypt recently. Yeah, because being the net security provider and I mean affordable security. I mean we have weapons, that kind of things, and we have a good relationship with most African nations in a historical perspective too.
I have two more Yeah, I scholarly think opinions. these points will be more than enough. Suhasini Haidar says Actually, कि please. could be India right way and forward. Africa regions, they both have common problems that brings these two regions together. जैसे नेल्सन मंडेला ने बोला था कि कॉमन स्ट्रगल्स अगेंस्ट इनजस्टिस एंड ऑपरेशन थे. सिमिलरली श्याम सरन बोलते हैं कि इंडिया शुड नॉट प्ले अ कैचअप गेम विद चाइना, रादर इंडिया शुड लेवरेज इट्स ओन यूनिक स्ट्रेंथ्स. तो ये शायद कंक्लूजन के लिख सकते हैं थोड़ा सा हम. और एशिया ये भी है. कॉरिडोर है उसको फास्टेन किया जाए, मतलब ये सब भी लिख सकते हैं पेपर वर्ड में. ठीक है. Yeah, all relevant points. The challenge is how much we can write. Okay, I think on that note I should stop the recording. Just one more point. What was your argument with respect to India-Africa relation as held by Nelson Mandela? Can you please repeat? Nelson Mandela said that the golden thread woven in common struggles against injustice and oppression. तो मतलब बहुत सारे कॉमन प्रॉब्लम्स है इंडिया एंड अफ्रीका आज भी, तो वी बोथ शुड कम टुगेदर, ऐसा कुछ वही. ठीक है, चलो guys, thank you very much for everyone for participating. I'll upload this video on YouTube as well. Please like, share and subscribe the video.